निर्गमन की किताब यात्रागमத்தின் புத்தகம் तीसरा अध्याय 3ஆம் அதிகாரம் 13-14 में इस तरह पढ़ते हैं। 13-14 நாம் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம்। तब मूसा ने खुदा प्रभु से कहा कि मैं इस्राएल को पास जाकर कि उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहे कि उसका नाम क्या है तो मैं उनको क्या बताओ। प्रभु ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इज़राइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने तुझे तुम्हारे पास भेजा है करके यहाँ पर लिखा है। அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் போய் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லும்போது அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டால் நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் என்றான்। அதற்கு தேவன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்வாயாக என்றார்। आमतौर पे हम देखते हैं எப்படி இவ்விதமாய் நாம் பார்க்கிறோம் कि हम जो आके बाइबल जब पढ़ते हैं நாம் வேதத்தை வாசிக்கின்ற போது कई चीजें अनेक காரியங்களை कई बार हम जब शास्त्र जब पढ़ते हैं अनेक मुறை நாம் வேதத்தை வாசிக்கின்ற போது हमारे लिए वो कई बार हम पढ़ते तो है बाइबल நாம் अनेक मुறை படிக்கிறோம் लेकिन कुछ चीजें के हमारे आके नजर से हट जाती हैं। சில காரியங்கள் நம்முடைய கண்களை விட்டு மறைக்கப்படுகிறது। उस हम जो बाइबल पढ़ने के समय कुछ बारीकी बातों को வேதத்தை படிக்கும் சில சிறிய சொற்களை நுணுக்கமான சொற்களை वो कई बार हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है நம்முடைய தலைக்கு மேலாக போய் விடுகிறது और उसके से कई आके जो बहुत ही जो अहम बातें அது நிமித்தம் முக்கியமான காரியங்களை वो जो मुख्य बातें जो है முக்கியமான காரியங்களை वो हमसे छूट जाती है, நம்மை விட்டு அது அகன்று போகிறது। मैं अपना संदेश शुरू करने से पहले நான் செய்தி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன்। आज का संदेश जो है இன்றைய தினத்தின் செய்தியானது थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும், थोड़ा सा कठिन होगा समझने के लिए, கொஞ்சம் அது கஷ்டமாக இருக்கும் புரியுது। कुछ चीजें मैं आपको कुछ चीजें जो बताऊंगा मैं சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், वो आपके लिए नया होगा, அது உங்களுக்கு புதியதா இருக்கும்। लेकिन बाइबल में नया कुछ नहीं, அது வேதத்தின் பார்த்தால் அது புதியதல்ல। कुछ छुपी हुई चीजें जो है சில மறைந்திருக்கிற சில हम रोजमर्रा पढ़ते हैं, நாம் தினந்தோறும் படிக்கிறோம், लेकिन वो चीज आके हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है, हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। சில காரியங்கள் நம்முடைய தலைக்கு மேலாக போய்விடும்। इसे कुछ चीजें जो बताऊंगा मैं அப்படி சில காரியங்களை சொல்லுவேன், एक वक्त आके उससे आप सहमत भी नहीं होंगे, அந்த காரியங்கள் சில வேளையில அது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம், அதாவது நீங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க, ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க। उसमें सहमत होना या नहीं सहमत होना, ஒத்துக்கொள்கிறதோ ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதோ ये आपके ऊपर मैं डिसीजन ले लेता हूं, உங்களுக்கு உங்கள் மேல் விட்டு விடுது। लेकिन मैंने जो सीखा நான் கற்றுக்கொண்டதை और मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया நான் படித்ததை और मैंने जाके जो शास्त्र में से मैं जो ज्ञान प्राप्त किया, जो मेरा जो कार्य जो है வேதத்தின் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொண்டதை वो मेरा कर्तव्य है कि मैं आके औरों को बताऊं, அது என்னுடைய கடமை, நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும்। जो ज्ञान जो आके अनुग्रह जो आके जो कार्य प्रभु किसी को देता है तो ஒரு ஞானம் ஒரு கிருபை ஒருவருக்கு கொடுத்தால் वो क्या हम औरों को बांटना चाहिए, அது மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்। इसे कुछ बातें आपको थोड़ा समझ मुश्किल होगा, அது சில வேளையில உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம்। ये जो संदेश जो एक मैसेज में खत्म नहीं होगा, இந்த செய்தியானது ஒரே நாளில் அது प्रभु முடிக்க का போறதில்லை। इच्छा होगा तो इसका कंटिन्यूएशन में अगले जब भी मेरा वक्त आएगा तो मैं आके उसे कंटिन्यू करूंगा। கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வேற ஒரு நாள் जो कुछ हम संदेश देते वो क्लियर होना चाहिए, இது உங்க மற்றவங்களுக்கு அது கிளியராக புரிய आके வேண்டும், सिर्फ जल्दी में आके आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। அரைகுறையாக அது சொல்லக்கூடாது। मैं कई लोग से सुना भी है, சில இடத்துல राजा का मैसेज कुछ समझ में नहीं आता करके, ராஜாவுடைய செய்தி எல்லாருக்கும் புரியுறது இல்லை, मैं उसे मानता हूँ पूरी तरीके से, நான் அதை ஒத்துக்கொள்கிறேன்। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उसको सरल करने के लिए। நான் முடிந்த அளவுக்கு அதை சரியாக புரிய வைக்க பார்க்கிறேன்।
वचन की गहराई तक जाना चाहिए। நாம் வசனத்தின் ஆழத்திற்குள் செல்ல आप வேண்டும். ऊपर ही तैरते हैं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी आपको। மேலோடி நீந்தினால் சரியாக जो புரியாது. गोताखोर होता है ना, जो डाइवर, जो आके जो गोताखोर தண்ணியிலே அதாவது டைவ் वो அடிக்கிறது. आके जो नीचे गहराई में जाने के बाद ही मोती मिलती है। தண்ணீரின் ஆழத்தின் போனாதான் அந்த முத்துகள் इससे கிடைக்கும். कई चीजें के ऊपर से तैरते हैं तो कुछ बातें हमको समझ में नहीं आएगी आपको। மேலாட்டில் நீந்தினால் ஒன்றும் கிடைக்காது. थोड़ा गहराई में जाए। ரொம்ப तो ஆழத்துக்கு आज हम थोड़े गहराई में जाएंगे। இன்று நாம் कुछ கொஞ்சம் बातें जो है मैं पहले से मेरे कई संदेशों में इस बातों को मैं बताया होगा। यहाँ पर एक संभावना को देखते हैं। यहाँ पर இங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் मूसा பார்க்கிறோம். के मिस्र से भागता हुआ மோசே எகிப்திலிருந்து ஓடி यहाँ போகிறார். पर एक जंगलों में आके आया है। அங்கே காட்டுக்குள்ளே वहां पर आके इस प्रकार आके जो एक आके स्त्री से शादी करके विवाह करके அங்கே ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணுகிறார். वहां पर 40 साल आके एक भेड़ बकरियों का आके चला रहा था। அங்கு 40 வருஷம் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார். ऐसे होने के समय आके इस प्रकार अचानक आके प्रभु ने आके जो सच्चा परमेश्वर जो है अब्राहम इसहाक याकूब जाके का परमेश्वर जो है அபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு என்கிற அந்த உண்மையான தேவன் परमेश्वर उसको दर्शन हुआ के देखते हैं। அவருக்கு தரிசனமானார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். उसके लिए नजारा बहुत ही अजीब था। அவருக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா लेकिन இருந்தது. पहली बार ऐसा एक नजारा देखा। ஏனென்றால் அவர் முதலாக அப்படி एक பார்த்தார். झाड़ी जल रही है, ஒரு அந்த முட்செடி எரிகிறது. लेकिन वो झाड़ जो है அந்த वो மரமானது भस्म नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ அந்த है। முட்செடி எரியவில்லை, எரிந்து போகவில்லை. वो नजारा देखने के लिए அந்த காரியத்தை அவர் मूसा करीब जाता है। அவர் அதை பார்க்க முடியாது கிட்டி तब சேருகிறார். बाबा के इसको आके एक बड़ा एक टास्क देता है मूसा को। அப்பொழுது கர்த்தர் அங்கே ஒரு காரியத்தை एक बड़ा சொல்கிறார். सेवा के लिए प्रभु मूसा को बुलाता है। அவர் பெரிய ஊழியத்திற்காக அவரை அழைக்கிறார். तो इजराइल के लोगों को இஸ்ரவேலின் ஜனங்களை जब मिस्र देश में है எகிப்தில் இருக்கிறார்கள், वहां से मैं लोगों को छुड़ा के लिया करके அவர்களை விடுதலையாக்க நான் உன்னை तब அனுப்புகிறேன் आके என்றார். मूसा प्रभु से पूछता है, அப்பொழுது மோசே जब கர்த்தரிடத்தில் लोग கேட்கிறார், कहेंगे कि तुमको कौन भेजा, உம்மை யார் அனுப்பினது, मैं क्या कहूँ? நான் என்ன சொல்வேன் அதற்கு? उनसे कहना मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा करके कहना। நான் இருக்கிறேன் என்பவர் சொல்கிறார் என்று சொல்லு. इंग्लिश में लिखा I am what I am और I am who I am। இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்று ये சொல்லி जो சொல்கிறார். शब्द जो है I am what I am और I am who I am that I am करके जो है या मैं हूँ सो हूँ, என்று சொன்ன அந்த நான் இருக்கிறவராய் இருக்கிறேன் என்று ये சொன்ன जो शब्द जो है இந்த வார்த்தை इसी को आके यहोवा करके कहते हैं। இதைத்தான் யெகோவா என்று சொல்வார். इसमें जाने से पहले இதற்குள்ளாக போவது बाइबल में जो आके जो प्रभु करके जो कहते हैं வேதத்தில் நாம் கர்த்தர் என்று சொல்கிறது एलोहिम करके नाम दिया गया है। எலோஹிம் என்று சொல்லி சொல்வார். एलोहिम का मतलब है परमेश्वर, प्रभु। எலோஹிம் என்றால் தேவன். ये आम नाम है, जेनेरिक नेम है ये, आम नेम, பொதுவான ஒரு பேராக இருக்கு. अभी हर धर्म में आके देवता का नाम होता है। ஒவ்வொரு மதத்திலும் ஒவ்வொரு சாமிகளுக்கு பேர் உண்டு. हिंदू में ईश्वर कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। இந்துல ஈஸ்வர் இல்லனா பரமேஸ்வர் என்று சொல்வார்கள். या अगर इस्लाम में देखें तो अल्लाह कहके कहते हैं। இஸ்லாம்ல அல்லாஹ் என்று சொல்வார்கள். हिब्रू में के एलोहिम जो वचन जो बात है, शब्द है, எபிரேய பாஷையிலே எலோஹிம் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை जेनेरिक नेम है, एक आम नाम है। அது ஒரு பொதுவான ஒரு பெயர். वो के किसी को भी वाके दे सकते हैं हम, அது யாருக்கும் கொடுக்கலாம். वो के सच्चा परमेश्वर को भी एलोहिम कहते हैं। உண்மையான தேவனுக்கும் எலோஹிம் என்று और சொல்வார்கள். जो सच्चा परमेश्वर यहोवा के अलावा भी जो है உண்மையான தேவன் அல்லாதவைகளுக்கும் उनको भी एलोहिम करके कहा जाता है। அவைகளுக்கும் எலோஹிம் என்று சொல்வார்கள். उदाहरण के तौर पे भजन संगीत 82:1 में संगीतम 82:1 वासी वो जरा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 जगह लिखा है, प्रभु के मंडली में प्रभु जाके वहां पर है करके लिखा है। தேவனுடைய சபையிலே தேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார். वहां पर सच्चा परमेश्वर यहोवा जो है, உண்மையான தேவன் யெகோவா என்பவர், उसको भी एलोहिम करके कहा गया है। அவருக்கும் எலோஹிம் என்று சொல்வார்கள். बाकी देवता जो है, மற்ற தேவன்கள், उसके जो डिवाइन काउंसिल जाके जिसकी मंडली जो आसमान पर जो है, அதாவது வானமண்டலத்தில் இருக்கின்ற उसके लोगों को भी एलोहिम करके कहा गया है। அவைகளுக்கும் எலோஹிம் என்று சொல்வார்கள். इतना नहीं बल्कि जो अन्य जाति के देवता जो है மற்ற பிரஜாதிகளுடைய தேவதைகளுக்கும் उनको भी एलोहिम करके लिखा गया है। அவைகளையும் எலோஹிம் என்று சொல்வார்கள். हम देखेंगे पहले राजा की किताब 1 ராஜாவின் புத்தகம் 11 अध्याय 11ஆம் அதிகாரம் 33 वचन 23ஆம் வசனம். पहला राजा 11:33 13 11 33
देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देवता के नाम लिखे गए हैं இங்க சில தேவதைகளுடைய பேர் कि எழுதப்பட்டிருக்கு. इस प्रकार के कीमोश के बारे में लिखा है காமோஸ் என்று और சொல்லி मोआबियों के देवता के बारे में लिखा है மோவாபியுடைய தேவதைகளை குறித்தும் इन எழுதப்பட்டிருக்கு. देवता को भी एलोहिम करके लिखा गया है बताया गया है 3 தேவதைகளுடைய பேரும் எலோஹிம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. इतना ही नहीं बल्कि जाके जो मरे हुए जो आत्मा जो होते हैं மரித்து போன ஆத்மாக்கள் उनको भी एलोहिम करके कहा गया है அவைகளும் எலோஹிம் என்று हम சொல்லப்பட்டிருக்கு. पढ़ेंगे पहले सामुएल की किताब 1 சாமுவேலின் புத்தகம் 28वां अध्याय 18ஆம் அதிகாரம் 13वां वचन 28ஆம் அதிகாரம் 13. ஒன்று சாமுவேல் 28:13 देवरगल यहाँ पर आके के एलोहिम बाहर आया करके यहाँ पर लिखा है தேவர்கள் பூமிக்கு இருந்து ஏறி வருகிறதை यहाँ पर காண்கிறோம். जाके यहाँ पर सौल जो है जादू टोना करने लड़की औरत को बोलती है मुझे सौल को सैमुएल को मुझे बाहर लेके आ गए சவுல் விதமாய் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை கொண்டு சாமுவேல் எழுப்பி வரச் செய்கிறான். सामुएल को देखते ही சாமுவேலை பார்த்த உடனே I see एलोहिम அவர் எலோஹிம் என்று சொல்லப்பட்டது. मरा हुआ है அவர் தேவதை அதாவது மரித்து போனவர். लेकिन मरने के बाद जब उसको जब बुलाता है மரித்த பிறகு அவர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது எலோஹிம் என்று சொல்லி को देखता होकर कहता है எலோஹிமை பார்க்க என்று அவள் சொல்லுகிறார். एलोहिम जब मैंने जो कहा जैसा எலோஹிம் நான் சொன்னது एलोहिम जो है कि प्लूरल है जैसा பன்மையாக जिसको बहुवचन कहते हैं हिंदी में பன்மையாக तो सिंगुलर जो है एल कहते हैं एल ई और एल தனிமையாக ஈஎல் சொல்வார். तो एलोहिम जो वचन जो है எலோஹிம் என்ற அந்த வார்த்தை वाक्य सच्चा परमेश्वर यहोवा को भी दिया गया है அது மெய் தெய்வத்துக்கும் அந்த யெகோவாவுக்கும் அந்த வார்த்தை और जो சொல்லப்பட்டிருக்கு. सच्चा परमेश्वर जो नहीं है உண்மையான தேவன் அல்லாதவைகளுக்கும் जो अन्य देवताएं हैं அந்நிய जो தேவதைகளுக்கும் आत्माएं हैं ஆவிகளுக்கும் आज जाके जो किस प्रकार के जो फरिश्ते हैं பரிசுத்தவான்களுக்கும் தூதர்களுக்கும் उनको भी एलोहिम करके नाम दिया गया है அவைகளுக்கும் எலோஹிம் என்று சொல்வார். यहोवा एलोहिम है யெகோவாவும் எலோஹிம் தான். लेकिन कोई भी एलोहिम यहोवा नहीं है எந்த यहोवा एलोहिम है யெகோவா அதாவது மெய் தெய்வம் எலோஹிம். लेकिन सब एलोहिम यहोवा नहीं है மற்ற எலோஹிம் என்று சொல்லப்படுற அந்த தேவதைகள் வந்து யெகோவா கிடையாது. एक ही यहोवा है ஒரே யெகோவா एक ही परमेश्वर है ஒரே தேவன் वही सच्चा एलोहिम है அவர்தான் உண்மையான தேவன். बाकी एलोहिम है மற்ற எலோஹிம் என்பது हालेलुया यहाँ पर हम क्या देखा कि यहाँ पर जाके जो एलोहिम जो शब्द जो है அந்த எலோஹிமே அந்த आके कई जाके जेनेरिक जाके कई लोगों को दिया गया नाम है ये देखते அது हैं மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெயர். लेकिन यहाँ पर आके जब प्रभु जब अपने आप को प्रकट करता है मूसा को மோசேக்கு தேவன் இங்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது पहली बार अपने पर्सनल नेम को मूसा को बताता है அங்கே முதல் முறையாக தன்னுடைய பேர் அதாவது சொந்த பேரை அவர் हम प्रभु को किसी भी नाम से उसको वर्णन नहीं कर सकते அவரை நாம் எந்த பேரிலும் வர்ணிக்க முடியாது. उसको किसी भी शब्द से उसको वर्णन नहीं कर सकते அவர் எந்த சத்தத்திலும் அவரை வர்ணிக்க यहाँ முடியாது. पर प्रभु मूसा पूछता है कि मैं क्या बोलूं इस्राएल के लोगों को நான் என்ன சொல்லுவேன் இஸ்ரவேல் मैं ஜனங்களுக்கு? जो हूँ सो हूँ ने भेजा कहा के நான் இருக்கிறேன் என்பதை என்னை அனுப்பினார் சொல்லு. I am have sent करके இருக்கிறவராக நான் मैं हमेशा रहता हूँ நான் எப்பொழுதும் நான் இருக்கிறேன். मैं किसी वक्त के अंदर नहीं रहता நான் ஒரு நேரத்துக்குள்ளாக मैं மாத்திரம் किसी जगह पे मेरा आके ठिकाना नहीं रहता ஒரு இடத்துல மாத்திரம் என்னுடைய मैं हर कहीं मौजूद हूँ நான் எங்கும் मैं இருக்கிறேன். हर कहीं हूँ நான் எங்கும் मैं இருக்கிறேன். आबाद तक हूँ நான் கடைசி வரைக்கும் என்றென்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் मैं हमेशा रहता हूँ मैं நான் எப்பொழுதும் இருக்கிறேன். भेजा करके क्या कहना कहा நான் அனுப்பினேன் और என்று इसी शब्द को मैं இதே வார்த்தை इसी शब्द से आया है यहोवा இந்த வார்த்தையில் இருந்தது வந்ததுதான் யெகோவா. यहोवा जो शब्द जो है யெகோவா என்ற வார்த்தை आगे हिब्रू में आमतौर पे जो इब्रानी किताब जो होता है जो हिब्रू स्क्रिप्चर जो होता है எப்ரூ வார்த்தையிலே इसको आके यूजुअली जो राइटर जो होते हैं அது எழுதின அந்த எழுத்தாளர் वो प्रभु का पूरा नाम कभी लिखते नहीं है தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் எழுதவில்லை. इनफैक्ट आप ये कहना चाहता हूँ நான் என்ன कि சொல்லுவேன், बाइबल जब लिखा गया பைபிள் எழுதப்படும் போது वहाँ के बिना किसी कॉन्सोनेंट के यानी किसी वॉवल्स के वॉवल्स यानी कहा तो उईर எழுத்து बोलता ना எந்த ஒரு உயிரெழுத்து மூலமாக कॉन्सोनेंट पे लिखा गया यानी மெய் எழுத்து மெய் எழுத்தினால் अभी எழுதப்பட்டது. राजा कहेंगे तो ராஜா சொல்லும்போது ए आके उईर எழுத்து मतलब आके वॉवल्स हो गया
அந்த ஏ எழுத்து என்பது உயிர் எழுத்தாகிறது. राजा जो बिना वॉवल्स के बिना आके जो इस प्रकार के स्वर के आके वो लिखा गया है. உயிர் எழுத்து இல்லாம அதை சொல்ல முடியாது. तो यहोवा करके जो नाम जो है, யெகோவா என்ற வார்த்தை उसे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश பார்த்தால் YHWH करके देखते हैं, YHWH या YHVH करके देखते हैं, YHVH, जहां पर आके स्वर नहीं है, உயிர் எழுத்து இல்ல, அங்க உயிர் எழுத்து இல்லை என்று சொல்வார். इसी कारण அதனபடினால் कि जो यहोवा करके जो नाम जो कहते हैं, யெகோவா என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை, या YHWH जो कहते हैं, YHWH என்று சொல்கிறது, कई आके शब्द का आके इस्तेमाल करते हैं. அது பல இடங்களில் அதை உபயோகப்படுத்தலாம். उदाहरण के तौर पे यहोवा कहते हैं, யெகோவா என்று சொல்லுகிறது, या यावे कहते हैं, யாவே என்று சொல்லுகிறது, या याहुवा कहते हैं, யாகுவா என்று சொல்லுகிறது. इसका कारण क्या है? அதனுடைய காரணம் என்ன? क्योंकि वावल्स नहीं है, அங்கு உயிர் எழுத்து இல்லை. உயிர் எழுத்து இல்லை. अब ये अगर हिब्रू में अगर देखेंगे तो இப்ரூவில் சொல்லும்போது YHWH जो है, YHWH என்பது जिसको के इस प्रकार आके हम कैसे हम आके इस्तेमाल करते हैं, அதை எப்படி உபயோகப்படுத்துறோம்? इस प्रकार आके योधे वाव है युद्ध है करके देखते हैं. योधे वाव है युद्ध है. வாவே इसका मतलब YHWH जो इंग्लिश शब्द है, அந்த YHWH என்கிற उसे हिब्रू में, அது இப்ரூ பாஷையிலே वो हिब्रू शब्द है, वो அது இப்ரூ ओके युद्ध है யூதே वाव है, வாவே YHWH. आपको थोड़ा कठिन होगा समझने के लिए, समझने थोड़ा कठिन होगा आपको थोड़ा सा, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு புரியுறது. वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए. அந்த வீடியோ நீ மறுபடியும் तो प्रभु ने अपने नाम को जब कहने के वक्त ताकि यहोवा करके बताया, प्रभु ने கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தை சொல்லும்போது யெகோவா என்று சொன்னார். आके यहोवा का जो शब्द जो है, யெகோவா என்கிற அந்த சத்தம் 3 आके जो मूल शब्द से निकला हुआ है, அது 3 வார்த்தையிலிருந்து வந்தது. यहोवा शब्द जो है, யெகோவா வார்த்தை वो என்பது 3 आके मूल शब्द से निकला हुआ है, மூல வார்த்தையிலிருந்து. एक आके हया, ஒன்று ஹயா, दूसरा होवे, இரண்டாவது ஹோவே, और तीसरा के याहया, மூன்றாவது யாஹயா. हया का मतलब ஹயாக்கு என்ற அர்த்தம் जो है, இருக்கிறவரும். होवे मतलब ஹோவே என்றால் जो था, இருந்தவரும். याहया मतलब யாயா என்றால் जो आने वाला है, வருகிறவர், या जो मैं रहूंगा, இருக்கிறவராய். जो था, இருந்தவரும், जो है, இருக்கிறவரும், जो मैं हूँ, இருந்தவரும், या आने वाला हूँ. வருகிறவருமாய். आपको ये बात सुन के हैरान होगी, प्रभु यीशु को रेवलेशन में क्या नाम दिया गया है? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவருடைய பேர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? जो था, जो है और जो आने वाला हमारा प्रभु करके. இருந்தவரும், இருக்கிறவரும், வருகிறவருமாகிய தேவன் என்று சொல்லி சொல்லலாம். हालेलुया. तो यहोवा का अगर उसको पूरा अगर डिस्क्राइब करेंगे तो அது யெகோவாக்கு என்ற வார்த்தையை பூரா பார்த்தால், जो था, இருந்தவரும், जो है, இருக்கிறவரும், जो रहता है, या जो आने वाला है करके देखते हैं. வருகிறவரும் என்று சொல்லி अभी यहोवा का जो कुछ खूबियों को देखेंगे हम, யெகோவா என்ற வார்த்தை என்று இன்னும் நிறைய வார்த்தை, गुणों को देखेंगे हम, அவருடைய குணங்களை उसके பார்க்கலாம். एट्रीब्यूट्स गुणों को हम देखेंगे किस तरीके का इसका क्या गुण है करके. அவருடைய நடைமுறை हमारा குணங்களை यहोवा आके कई बाकी देवता की तरह समान नहीं है. யெகோவா என்பவர் மற்ற தேவர்களை போல அல்ல. गुण उसकी खूबियां के सबसे अलग हम देखते हैं. அவர் எல்லாவற்றிலும் விசேஷித்தவர். क्या यहूदियों के बीच में इस प्रकार का आके चर्चा होते थे. யெகோவா என்ற அந்த வார்த்தை குறித்து यहूदियों के बीच इस प्रकार का चर्चा होते हैं. जो रबाई लोग, जो रबी लोग हैं, ரபிகள் மூலமாக இப்படி பேசிக்கொள்வார்கள். उन्होंने ये जाना है क्या, அவர்கள் என்ன நினைத்தார், उन्होंने अपने शास्त्र से ये जान लिया क्या, தங்களுடைய வேதத்தின் மூலமாக இதை புரிந்து கொண்டார்கள். प्रभु यहोवा जो है, யெகோவா என்பவர் वो आके इस प्रकार आके दो आके व्यक्तित्व से अपने आप को प्रकट करता है करके. இரண்டு நபர் மூலமாக தன்னை நபராக வெளிப்படுத்துகிறார். टू गॉड हेड जैसे कह सकते हैं. ரெண்டு தேவன் என்று சொல்லி சொல்லலாம். दो यहोवा करके उन्होंने आके प्रभु के
जो वचन सुनना के जान लिया करके देखते हैं। தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக இரண்டு யெகோவா என்று சொல்லி அவர்கள் एक புரிந்து यहोवा கொண்டார்கள். जो आके दिखता नहीं है, ஒரு யெகோவா என்பவர் காணப்படாதவர், एक यहोवा जो आके इंसानों को कई बार दिखाई दिया देखते हैं। ஒரு யெகோவா மனிதர்களுக்கு अनेक முறை कई தரிசனமானார், बार के बेगों के खंबे बनकर दिखाया, अनेक முறை மேகத்தின் தூணாக, कई बार आग के खंबे करके दिखाया लोगों को, அக்னி தூணாக நின்றார், कई बार इंसान के रूप में आके दिखाया करके देखते हैं, अनेक முறை மனிதர்களுடைய உருவத்தில் வந்து जिसको தோன்றினார். टेक्निकल टर्म में थियोफनी कहते हैं। அது தியோபில் என்று சொல்லுவாங்க. थियोफनी का मतलब प्रभु आके आके अपना को आके जाहिरी तौर से प्रकट करना, विजिबल आके अपीयरेंस कहते हैं, தம்மை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம். आके इसमें आके जो जो यहूदी लोग जो हैं, யூதர்கள் वो आके इस चीज को देखा करके देखते हैं। இந்த காரியத்தை அவர்கள் ये கண்டு चीज को கொண்டார்கள். मैं आपको थोड़ा सा मैं इजी करता हूं आपको, मैं இதை நான் உங்களுக்கு லேசாக एक्चुअली சொல்லுகிறேன். क्या कहना चाहता हूं करके நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்று, आपको आपको उदाहरण के तौर पे உதாரணமாக आज उत्पत्ति की किताब ஆதியாகமம் 9वां अध्याय 9ஆம் அதிகாரம் 6वां वचन, 6ஆம் வசனம். आदियागमम 9वां अधिकारम 6वां वचन। अभी यहाँ पर हम देखते एक वचन देखते हैं இந்த வசனத்தை कि பார்க்கலாம். जो कोई इंसान के लहू को बहाता है மனுஷனுடைய இரத்தத்தை சிந்துகிறவன் उसका भी बहाया जाएगा, அவனுடைய இரத்தமும் சிந்தப்படும். क्योंकि वो इंसान, क्योंकि वो प्रभु के स्वरूप में बनाया गया करके। மனுஷன் தேவ சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டபடியினால். अब ये कहने वाला कौन है? இதை சொல்லுகிறது யாரு? प्रभु कहता है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तो प्रभु कहता है तो कैसा कहना चाहिए? கர்த்தர் சொல்லும்போது எப்படி சொல்ல வேண்டும்? कि इंसान को मैंने अपने स्वरूप में बनाया करके। மனிதனை என்னுடைய சுயரூபத்தில் நான் உருவாக்கினேன். यहाँ पर हम पढ़ते हैं இங்கே என்ன படிக்கிறோம்? इंसान को மனுஷனை प्रभु के स्वरूप में बनाया करके। தேவ சாயலில் உண்டாக்கினேன். ये प्रभु कौन है? இந்த கர்த்தர் யார்? प्रभु, और एक प्रभु किसको दिखा कहता है वो? இந்த தேவன் யாரை காண்பிக்கிறார்? और एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। இன்னொரு உதாரணத்தை उत्पत्ति की சொல்லுகிறேன். किताब, उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 22ஆம் அதிகாரம் 12वां वचन, 12ஆம் வசனம். उत्पत्ति आदियागमम 22:12. पढ़ो। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक दृश्य देखते हैं। இங்கே ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். अब्राहम आके इसहाक अपने बेटे को आके वो बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। ஆபிரகாம் தன்னுடைய குமாரனை பலியிட போகிறார். अब जरा गौर से सुनिए जरा, நல்ல கவனமாய் கேளுங்க. अब्राहम जो है उसके बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा है। ஆபிரகாம் தன்னுடைய குமாரனை பலியிட போகிறார். परमेश्वर का फरिश्ता वहां पर आता है। அங்க தேவனுடைய தூதனானவர், परमेश्वर का फरिश्ता जब आके अब्राहम से कैसा क्या कहता है? அங்கே அபிரகாமிடத்தில் எப்படி சொல்லுகிறார்? अपने हाथ को उस बच्चे पर ना डाल, உன் கையை பிள்ளையாண்டான் மேல் நீட்டாதே. अब मैं जान गया நான் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன் कि तू प्रभु से डरता है நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், और तू अपने बेटे को உன் புத்திரன் மேல் मेरे से नहीं रोका करके कहता है। अपने बेटे को என்னுடைய மகனுக்கு तूने आके आके इस प्रकार आके मेरे से इस प्रकार नहीं रोका करके लिखा है। எனக்காக உன் பிள்ளை மேல் நீ கைப்பட பயப்படவில்லை. यहाँ पर फरिश्ता जो है, இந்த தூதனானவர் अब्राहम से कहता है, अब्राहम फरिश्ता वही है जो आके उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 1 वचन में अब्राहम से मिला अब अपना की बलि चढ़ाने के लिए ईसा को, ஈசாக்கு பலியிட சொன்னார். फरिश्ता यहाँ पर कहता है कि तो प्रभु से डरता है, நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் और சொல்லி मेरे लिए अपने बेटे को तूने आके त्याग देने के लिए भी तो नहीं रुका करके कहता है। எனக்காக உன் பையனை பலியிடுவதற்கு கூட நீ பயப்படவில்லை. यहाँ पर हम आके साफ साफ देखते हैं, நாம் இங்கே தெளிவாக பார்க்கிறோம். फरिश्ता जो है, தேவனுடைய தூதனானவர் जो है, प्रभु से जो है கர்த்தரோடு இருக்கிறவர், अलग व्यक्ति है, அவர் தனியாக இருக்கிறார். लेकिन वो आके उसका नेचर, उसका जो खूबी जो वही है जो यहोवा का है। அவருடைய தன்மை எல்லாமே பிதாவினுடையது. वो कहते हैं प्रभु से तू आके तू डरता है, நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறாய், और मुझसे तूने प्रभु आके बच्चे को तूने आके
मारने से नहीं रोका करके कहता நீ எனக்காக அந்த பிள்ளையை பலி है। यहाँ पर दो व्यक्ति கொடுக்காமல் देखते हैं, यहाँ पर இருக்கவில்லை. दो आके जो ईश्वरीय के आके कार्य को देखते हैं हम। இங்கே இரண்டு தன்மையை एक பார்க்கிறோம். यहोवा जो कि दिखाने देता, பார், ஒரு யெகோவா நமக்கு जो காணப்படாதவர், कि अंदर की ट्रांसेंडेंट है, காணப்படாதவர். और एक यहोवा இன்னொரு जो कि யெகோவா, फरिश्ता बनकर। அவர் தேவ एक தூதனானவர். चीज आपके अपने दिमाग से हटा लीजिए, ஒரு காரியத்தை உங்கள் மனதில் फरिश्ता நிறுத்துங்கள். का मतलब ये नहीं कि दो पंख है, हाथ में लाटे, अपना छड़ी है, वो जादू करेगा, वो चित्र दिमाग से निकाल दीजिए। அந்த தூதன் இல்ல, கம்போடு அது தடி फरिश्ता का மாயம் பண்ணுகிறவர். फरिश्ता का सिंपल मीनिंग ये है அந்த எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை. मैसेंजर। அவர் வந்து மெசேஜ், कई तरह के फरिश्ते वो अलग बात है, कई फरिश्ते अलग अलग फरिश्ते हैं उनके அநேக description। தூதர்கள் உண்டு. लेकिन ये जो फरिश्ता है, இந்த தூதனானவர் मैसेंजर ऑफ गॉड, இது தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு வருகிறவர். इंसान के रूप में மனிதனுடைய ரூபத்திலே अब्राहम को दिखाई दिया। ஆபிரகாமுக்கு ये जो காணப்பட்டார். मैसेंजर ऑफ गॉड जो है, இந்த தூதனானவர் यहोवा है। இவர் யெகோவாவாகவும், यहोवा की खूबी इसमें है, யெகோவாவினுடைய தன்மை இவரில் இருக்கிறது. यहोवा से अलग है, ஆனால் யெகோவாவை விட यहोवा से अलग है वो। அவர் யெகோவாவை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார். एक ही नेचर है, ஒரே நேச்சர் தான், लेकिन दो व्यक्ति है। ஆனால் இரண்டு நபராயிருக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya. और एक चीज हम देखते हैं, இன்னொரு காரியம், उत्पत्ति की किताब ஆதியாகமம் 19वां अध्याय 19ஆம் அதிகாரம் 24वां वचन 29 24. यहाँ पर हम देखते हैं, कार्य को देखते हैं। இங்கே ஒரு காரியத்தை इस பார்க்கிறோம். वचन को जरा गौर से पढ़िए आप। இந்த வசனத்தை यहाँ கவனமாய் पर படிங்க. आके तीन व्यक्ति जब अब्राहम को मिलने जाते हैं, இங்கே மூன்று பேர் ஆபிரகாமை சந்திக்க वो एक போகிறார்கள். व्यक्ति जाके यहोवा करके लॉर्ड करके लिखा गया है। அங்க ஒருவர் வந்து யெகோவா தேவன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். वो इंसान के रूप में आया है, அவர்கள் மனித ரூபமாய் देख வந்திருக்கிறார்கள். सकते हैं अब्राहम से। ஆபிரகாம் அவரை பார்க்கிறார். अब्राहम के साथ बैठ के खाया, அவரும் ஆபிரகாமோடு கூட இருந்து अपने சாப்பிட்டார். पैर को धुलवाया उसने, அவருடைய கால்களை கழுவினார். उससे रेस्ट लिया करके देखते हैं। அங்கே ரெஸ்ட் எடுத்து இளைப்பாறினார்கள். वही यहोवा जो है, அதே யெகோவா தான் सोदम गुमारे के पास सोदम गुमारा को आता है, சோதோம் கோமோராவுக்கு और வருகிறார்கள். क्या करता है, என்ன செய்கிறார்? वो क्या आग और गंधक को यहोवा से भेजता करके लिखा है। அந்த அக்னியை யெகோவாவினிடத்திலிருந்து அனுப்புகிறார்கள். यहाँ पर यहोवा है, அந்த இங்கே யெகோவா यहाँ இருக்கிறார். पर आग को भेजने वाला यहोवा है, அந்த அக்னி அனுப்புகிற அந்த யெகோவா இங்கே தான் இருக்கிறார். लेकिन कहाँ से भेजता है, ஆனால் எங்கிருந்து அனுப்புகிறார்கள்? यहोवा से भेजता है। யெகோவாவிடத்திலிருந்து அனுப்புகிறார். तू यहोवा, நீர் யெகோவா. दो यहोवा है। ரெண்டு யெகோவா. हालेलुया। ஹalleluya. ये मेरा अपना खुद का कुछ है नहीं, இது என்னுடைய இது கிடையாது. ये मैं कुछ जाके कुछ बनाकर आके कुछ जाके कुछ चीजों को बनाकर अपने खुद के सोच से बोलता करके ऐसा नहीं है। நானே யோசித்து, நான் என்னுடைய மூளையினால் யோசித்து பேசுகிறேன் என்று அல்ல. ये बाइबल में है, இது வேதத்தில் உள்ளது. आमोस की किताब ஆமோஸின் புஸ்தகம் 4 अध्याय 11 वचन को पढ़े। 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். हाँ, सोदम कुमारा दे, हाँ, नहीं नहीं, वो आपस से पढ़िए बराबर। सोदम गुमरा को, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए बात करने वाला कौन है, இங்கே சொல்லுகிறது யாரு? प्रभु यहोवा, கர்த்தர் யெகோவா. फर्स्ट पर्सन है वो जो बात करता है। முதல் நபர். लेकिन जब बात करने के वक्त பேசும்போது जैसा प्रभु ने கர்த்தர் सोदम और गोमोरा को जैसा डिस्ट्रॉय किया, சோதோம் கோமோராவை அழித்தது போல मैं भी तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता करके यहाँ पर लिखा है। நானும் உங்களை அழிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறேன். यहाँ पर प्रभु बात करता है और एक प्रभु करके कहता है। இங்கே யெகோவா பேசுகிறார், ஆனா இன்னொரு யெகோவாவையும் சொல்லுகிறார். राजा का अपना कोई आइडिया नहीं है, இது ராஜாவுடைய, राजा का कोई भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है। இது ராஜாவுடைய எந்த யோசனையும் கிடையாது. मैं सिर्फ क्या करता हूँ, நான் என்ன செய்கிறேன்? इन्वेस्टिगेट करता हूँ, நான் இதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், रिसर्च करता हूँ, ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறேன், आपको सामने पेश करता हूँ। நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். आपको मानना या नहीं मानना நீங்க ஏற்றுக்கொள்வது ஏற்றுக்கொள்ளாது இருக்கிறது आपके ऊपर है। அது உங்களுடையது. जस्टिन मार्टर, ஜஸ்டின் மார்ட்டின் என்பவர்
दूसरा शताब्दी में रहने वाला। இரண்டாம் தலைமுறையில் உள்ளவர். जेनेसिस उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय 24वां वचन का ये वर्णन देता है वो। ஆதியாகமம் 19 குறித்து இது இவ்விதமாய் விளக்குகிறார். वो क्या कहता है? அவர் என்ன சொல்கிறார்? कि मसीह जो है கிறிஸ்துவானவர் वो परमेश्वर है, அவர் தேவனாய் இருக்கிறார், वाक्य प्रभु है, அவர் கர்த்தராய் இருக்கிறார், परमेश्वर का बेटा है, அவர் தேவனுடைய குமாரன். एक जमाने में वाक्य इंसान के रूप में, அவர் ஒரு காலத்து மனிதனாக फरिश्ते के रूप में, தூதனுடைய ரூபத்தில் आके अपने आप को आके आग के रूप में, தன்னை அக்னியாகவும், आज जो कि झाड़ी में जो कि आग जो प्रकट हुआ, அந்த முட்செடியில் காணப்பட்ட அந்த அக்னி, वही जो कि सन ऑफ गॉड, அதே தேவனுடைய குமாரன், कि अब्राहम से बात किया, அவர் ஆபிரகாமோடு பேசினார், वही जो कि जो एंजल जो वही सन ऑफ गॉड जो है, प्रभु का बेटा जो है, அதே தேவனுடைய குமாரன், उसी ने सोदम और गोमोरा को तबाह किया करके जस्टिन मार्टर कहता है। சோதோம் கொமோரா அழித்தார் என்று सोदम और गोमोरा சொல்கிறார். को डिस्ट्रॉय किया परमेश्वर का बेटा यीशु ने। சோதோம் கொமோராவை அழித்தது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. मेरा कुछ नहीं है, என்னுடைய யோசனை கிடையாது, ये सदा से आ रही, सदियों से चलती आ रही है। இது அப்படியே தலைமுறையாக வந்து கொண்டிருக்கு. या कि जो गॉड है जो कहते, दो प्रभु के कार्य को जो कहते हैं, இந்த ரெண்டு தேவனை குறித்து சொல்லும்போது यहूदी भी आके इस जो सच्चे यहूदी जो है, உண்மையான யூதர்கள் जो आके अपने किताब जो अपने पढ़ाई के बारे में जो कि बहुत ही सीरियस और सिंसियर जो है, ரொம்ப தன்னுடைய படிப்பில் ரொம்ப சின்சியரா இருந்தவர்கள், वो ये चीज जाना है। அவர்கள் இந்த காரியத்தை கண்டார்கள். एक जो आके जो विद्वान है, ஒருவர் வித்வானா இருந்தார், स्कॉलर जो है, ஒரு ஞானி, उसका नाम बेंजामिन सोमर है। அவர் பேர் பெஞ்சமின் सोमर। उसका कहना क्या है? அவர் என்ன कि சொல்லுகிறார்? मसीह में जो कि मसीह का जो त्रिएक का जो उपदेश जो है, கிறிஸ்தவத்தின் அந்த திருத்துவத்தின் உபதேசம், या कि यहूदी का जो जड़ से निकला हुआ कहता है, அது யூதர்களுடைய வேரிலிருந்து வந்ததா। वाक्य जो ट्रिनिटी जो कहते हैं, ट्रिनिटी திருத்துவம் என்று या कि சொல்கிறது, जो यहूदी का मूल आके जो के उपदेश से निकला हुआ करके कहते हैं। அது யூதர்களுடைய அந்த மூல உபதேசத்திலிருந்து வந்தது. और इसमें कहा कि डैनियल बोयारिन और एक आके स्कॉलर है, டேனியல் போயரின் என்று उसका कहना क्या है? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? सेकंड गॉड का जो कार्य जो है, இரண்டாவது தேவனுடைய காரியத்தை குறித்து, लोगस जिसको कहते हैं, दूसरा परमेश्वर जो प्रभु लोगस यानी परमेश्वर का वचन, தேவனுடைய வார்த்தை லோகஸ் என்று சொல்லுகிறது, या उसका मेमरा जो कहते हैं, वचन जो अरमिक में मेमरा कहते हैं, अरमिकல வந்து मेमरा, ये कि यहूदियों का कार्य है करके कहता है। இது யூதருடைய காரியம். யோவான் जब अपने गॉस्पेल को लिखता है, யோவான் தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் யோவான் எழுதும்போது, का जो पहले जो फर्स्ट अध्याय को देखते हैं, அவருடைய முதல் அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது, शुरू करने के बाद ऐसा कि आदि में वचन था, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, वचन प्रभु के साथ था, அந்த வார்த்தை वचन ही தேவனோடு प्रभु இருந்தது, था कहता है। அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ये யோவான் को कहां से मिली? இந்த வார்த்தை எங்க இருந்து யோவான் கிடைத்தது? को ये कहां से आके कार्य को मिला? இந்த வார்த்தை யோவானுக்கு எப்படி வெளிப்பட்டது? यो खुद यहूदी है, அவர் யூதன் தான். क्योंकि उनके लोग के बीच में ये आके चर्चा हुई करती थी। இது அவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் இது சம்பாஷித்துக் परमेश्वर का கொண்டிருந்தார்கள். फरिश्ता आना जाना, अपने आप को दिखाई देना யோவான் को अच्छी तरह पता है। தூதர்கள் அவருடைய மத்தியில் வருகிற போறதெல்லாம் யோவானுக்கு நன்றாக परमेश्वर का தெரியும். वचन के बारे में யோவான் को अच्छी तरह पता है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை குறித்து நன்றாக தெரியும். परमेश्वर को अपने आप को दर्शन देना पुराने नियम में யோவான் को अच्छी तरह पता है। அந்த தூதனானவர் தரிசனம் கொடுக்கிறது எல்லா காரியங்களும் யோவானுக்கு நன்றாக एक ही தெரியும். चीज है जो யோவான் आके जो अलग से हटके लिखता है, ஒரே காரியம் யோவானுக்கு மாத்திரம் அது जो தனியாக यहूदी को தெரியும். हजम नहीं होता, அது மற்றவர்களுக்கு அது புரியாது, यहूदी को हजम नहीं होता। யூதர்களுக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ள परमेश्वर மாட்டார்கள். इंसान बनकर पैदा हुआ, தேவன் மனிதனாய் பிறந்தார் என்கிற அந்த வார்த்தை इंसान में அவர்களுக்கு ஜீர்ணிக்கவே முடியவில்லை. इंसान के रूप में दिखाई दिया, वो एक बात है, थियोफनी कहते हैं। அதாவது அவர் மனிதனாக காணப்பட்டார், அது வேற காரியம். लेकिन परमेश्वर इंसान होके एक औरत के पेट में पैदा होना,
ये उनके लिए नामुमकिन था उसे एक्सेप्ट करने। தூதனானவர் ஒரு மனிதனாக பிறந்து ஒரு ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தார் என்று कैसा சொல்லுகிறார். क्या पैदा हो सकता है? அது எப்படி அது ஆகும் என்று हम சொல்லுகிறார். जानते हैं कि प्रभु वहां के अपने आप को दर्शन दिया, हमको पता। ये सब क्या अच्छी तरह यहूदी जानते हैं இந்த காரியங்களை யூதர்கள் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். आके, लेकिन वो एक चीज आके मानने के लिए तैयार नहीं है அந்த ஒரு காரியத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள कि முடியவில்லை. प्रभु इंसान बन के आना नामुमकिन है। தேவன் इंसान மனிதனாக होकर पैदा होकर आना इट्स इम्पॉसिबल। மனிதனாக பிறப்பதை அவர்கள் முடியாது என்று आपको சொல்லுகிறார். और एक उदाहरण देता हूं मैं। அதற்கு நான் உதாரணம் சொல்லுகிறேன். निर्गमन की किताब யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 24वां अध्याय 24ஆம் அதிகாரம் पहला वचन। முதலாவது வசனம். प्रभु के पास आके तुम आओ करके यहाँ पर प्रभु आके बात करता है। கர்த்தரிடத்து ஏறி வந்து என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். ये 24वां वचन के पहले 24वां अध्याय के पहला वचन में लिखा है। 24ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் अभी उसी 24वां अध्याय के 12 वचन को पढ़े। அந்த 24:12 வாசிக்கலாம். पहाड़ में मेरे पास आ करके कहता है। மலையின் மேல் என்னிடத்தில் ஏறி வந்து என்று हमने 24वां अध्याय के पहला वचन में क्या देखे? 24:1 என்ன சொல்லப்படுகிறது? प्रभु कहता है கர்த்தர் சொல்கிறார் प्रभु के पहाड़ पे जा करके। கர்த்தருடைய மலைக்கு போ என்று சொல்கிறார். उसी 24वां अध्याय के அந்த 24:12 12 वचन में 12 प्रभु कहता है அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார் मेरे पास आ। கர்த்தர் நீ என்னிடத்தில் बहुत के साफ साफ है, साफ साफ है। ரொம்ப தெளிவாக there are two gods, ரெண்டு இறைவன் என்று சொல்லி, लेकिन एक ही स्वभाव के हैं, ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒரே एक ही नेचर के हैं। ஒரே நோக்கமுடையவர். वो वही है जो प्रभु है, அவர்தான் இறைவன். लेकिन प्रभु से अलग है। वो ஆனால் அவர் தனித்து व्यक्तित्व में अलग है। அவர் தனித்து இருக்கிறார். जैसे आदम और हव्वा को देखते हैं हम, ஆதாம் ஏவாளை आदम और हव्वा को प्रभु ने दोनों को आदम ही नाम रखा। ஆதாம் ஏவாள் இருவருக்கும் ஆதாம் என்று 5वां अध्याय के पहला वचन को पढ़े। 5वां पढ़ेगा आदम इसको इंसान करके यहाँ पर तमिल में लिखा है। அவங்களுக்கு மனுஷர் என்று பேர். कुछ ट्रांसलेशन मैनकाइंड करके लिखा है, மனுஷர். लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में एडम करके लिखा है। दोनों को एडम करके नाम दिया है, இரண்டு பேருக்கும் ஆதாம் என்று தான் சொல்லுவாங்க. क्योंकि दोनों का नेचर एक ही है। அவருடைய தன்மை ஒன்றுதான். जब आदम से जब आके अव्वा की जब आके निकली, आदमिलिருந்து ஏவாள் எடுக்கப்பட்ட போது, आदम जब अव्वा को देखा, आदम ஏவாளை பார்த்தபோது, ये मेरा हड्डी का हड्डी है, मेरा गोश्त का, मेरा बदन का, मेरा खून का खून है कहता है। இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் ये மாம்சம், मेरा ही नेचर का है। என்னுடைய தன்மை, लेकिन दो अलग व्यक्ति है। ஆனால் वैसे प्रभु जो है, அப்படியே बेटा और जो बाप जो है, குமாரனும் பிதாவும் குமாரனும் एक ही नेचर के है। ஒரே தன்மையுடையவர். जैसे आदम और हव्वा एक ही नेचर के हैं, ஆதாம் ஏவாள் ஒரே दोनों को एडम कहा गया है, ஆதாம் என்று சொல்வார்கள். वैसे दोनों यहोवा है। அப்படியே இருவரும் लेकिन दोनों अलग व्यक्ति हैं। ஆனால் இருவரும் एक தனித்திருக்கிறார்கள். स्त्री है, एक पुरुष है, இது அவள் ஸ்திரீ, இது दोनों का अलग जेंडर है। எப்படி वैसे के दो अलग व्यक्ति है, बेटा और आके बाप। அப்படியே அவர்களும் தனித்திருக்கிறார்கள். इस उदाहरण से हम आके, इस आदम और हव्वा के उदाहरण से हम आके प्रभु के आके एट्रीब्यूट का आके उसके गुण को जान सकते हैं। ஆதாம் ஏவாளையும் வைத்து தேவனுடைய குணங்களை நாம் அறிய முடியும். और ऐसे इस प्रकार के हम देखते हैं प्रभु का जो कार्य बहुत ही अजीब है। இப்படியே நாம் தேவனுடைய அற்புதமான காரியங்களை प्रभु के कई बार के अपने कार्य को, अपने बातों को इंसान को इस तरीके से दिखाता है करके हम देखते हैं। अनेक मुறை தேவன் தம்முடைய காரியங்களை अपने आप को शब्द करके वचन के द्वारा अपने आप को दिखाता है। वो தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். आके उत्पत्ति किताब 3 अध्याय के 8वां वचन को पढ़ेंगे हम। ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 8वां वचन வாசிக்கலாம். यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, கர்த்தருடைய வார்த்தை, तमिल में वो क्लियरली लिखा नहीं एक्चुअली, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड वॉकिंग इन द गार्डन द कूल ऑफ द डे लिखा है। தேவன் वॉइस कैसा चल सकता है? பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தேவன் एक आवाज चल सकता है क्या? காற்று நடக்க முடியுமா? आवाज जो है, शब्द जो है, வார்த்தையானது நடக்க முடியுமா?
लेकिन यहाँ पर एक द वॉइस ऑफ द लॉर्ड वॉकिंग इन द गार्डन द कूल ऑफ द डे लिखा है। கர்த்தருடைய வார்த்தை அவர்களோடு கூட நடந்தது। इतना ही नहीं बल्कि ये वचन जो है வார்த்தை अब्राहम को दर्शन जो दिया है ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமானது बाहर लेके आके देखते हैं। அவர் வெளியே கொண்டு वंदा। अब 15 अध्याय के 15 वचन को पढ़ेंगे हम। आदियागम 15 पहला वचन को पढ़े, मतलब 15 1 वासी फर्स्ट। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आके अब्राहम को दर्शन हुआ करके देखते हैं। दर्शन मतलब क्या है? கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு दर्शन का मतलब क्या है? தரிசனத்திலே समथिंग वी सी, और பார்க்கிறார், उसी को दर्शन बोलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन दर्शन में आया करके देखते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு दर्शन, वो वचन ने क्या किया? 15 को पढ़ेंगे, 15 वचन, 15 वचन को 15 वचनத்தை படிக்கலாம்। 15 वासी 15 अंजी सॉरी 15 अंजी सॉरी उसे बाहर ले आया और आसमान की तरफ देख करके कहा। வெளியே அழைத்து வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார் என்று சொன்னார்। यहाँ पर देखते परमेश्वर का वचन जो है கர்த்தருடைய வார்த்தை अब्राहम को दर्शन दिया, और वचन ने क्या किया? उसने अब्राहम को बाहर लेके आया और आसमान की तरफ देख, வெளியே வந்து வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார்। इंसान के दर्शन वो देख सकता है अब्राहम, அந்த வார்த்தை दर्शिக்க முடியும், उसे छू सकता है, அதை தொட முடியும்। इससे जब यीशु यूहन्ना जब आके यहूदी से बात करने के वक्त யோவான் யூதரிடத்தில் பேசும்போது अब्राहम से मैं पहला हूं, आई एम करके कहता है। आब्राहमुக்கு मुன்பாக நான் இருக்கிறேன்। अगर तुम अब्राहम के बच्चे होते तो मुझे ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि अब्राहम ने मेरे साथ नहीं क्या कहता है। अब्राहम அப்படி செய்யவில்லை என்று சொல்லுவார்। अब्राहम कब आके यीशु को देखा और कब आके क्या नहीं किया अब्राहम से? अब्राहम எப்பொழுது தேவனை பார்த்தார், எப்பொழுது அவர் यीशु कब देखा अब्राहम ने? எப்பொழுது अब्राहम के मेरे दिन को देखना चाहता था, वो देखा कहता है। அவர் என்னுடைய நாளை காண ஆசையா இருந்தார், அது அவன் கண்டு களி கூர்ந்தான்। बिफोर अब्राहम आई एम कहता है, मैं अब्राहम से पहला हूं। वही नाम जाके प्रभु के मूसा कहता है कि आई एम, அதே வார்த்தை मैं हूं जो सो हूं कहता है। நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று यीशु भी यहोवा है, हालेलुया। இயேசுவும் யெகோவா தான், लेकिन बाप से अलग है व्यक्ति, அவர் பிதாவை वही खूबी यीशु में है, अलग तनिயாக இருக்கு। उस कार्यक्रम आके नेक्स्ट आके कार्य को देखेंगे उस அது அடுத்த டைம்ல हम आके प्रभु यीशु को वचन कह के आके हम आके यूहन्ना में जैसे देखते हैं हम, யோவானிலே பார்க்கிற इस प्रकार कि परमेश्वर यीशु को वचन करके नाम दिया गया है। கர்த்தர் விதமாக இயேசுவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொன்னார்। प्रकट की किताब रेवलेशन की किताब வெளிப்படுத்தல் 19वां अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। 13 वचनத்தை वासिங்க। 19 13 उसका नाम है परमेश्वर का वचन, देखते हैं हम। அவருடைய அத தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லுவார்। वही वचन जो कि अब्राहम को मिला, அந்த வார்த்தை தான் अब्राहम, वही वचन जो यिर्मयाह से बात की, அந்த வார்த்தை தான் वही वचन जो कि सैमुएल को मिला, அந்த वार्த்தை தான் वही वचन आके जो मरियम के पेट में इंसान के रूप में पैदा होकर दुनिया में आया। அதே வார்த்தை தான் மரியாளுடைய गर्भத்திலே மனிதனாக பிறந்தார்। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय के 18 वचन को पढ़ेंगे हम। யோவான் 1:18 किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, தேவனை ஒருவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை। तमिल में एकलौता बेटा लिखा है, அவருடைய மடியில் குமாரன், तमिल में एकलौता बेटा लिखा है, அவருடைய ஒரே பேரான, इंग्लिश में ओनली बिगॉटन सन लिखा है, ஒரே பேரான குமாரன்। लेकिन अगर ग्रीक में देखेंगे तो கிரேக்க வார்த்தையில் சொன்னா दी ओनली गॉड लिखा है। ஒரே தேவன் என்று சொல்லி किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, ஒருவரும் காணாதவர், लेकिन एक ही परमेश्वर जो है அதே தேவன் தான் जिसने प्रभु को दिखाया कहते हैं, जिसने एक्सप्लेन क्या दिखाया है। தேவனை காண்பிக்கிறவராய் இருந்தார்। तो मैं ये आके विश्वास करता हूँ, நான் விசுவாசிக்கிறேன், जो परमेश्वर जो किसी को नहीं दिखाई देता, தேவன் யாருக்கும் காணப்பட மாட்டார், यीशु के जरिए वो प्रभु को देख सकते हैं। இயேசு மூலமாக நாம், यीशु के जरिए ही एक इंसान प्रभु को देख सकता है, இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக यीशु के जरिए एक व्यक्ति प्रभु के पास पहुंच सकता है। தேவனிடத்தில் சேரலாம்। यहाँ पर एक कार्यक्रम देखते हैं, இங்கே நாம்
ஒரு या காரியத்தை मूसा के பார்க்கிறோம். अपने प्रभु को क्या कहता है மோசே விதமாய் சொல்லும்போது कि तेरे महिमा को मैं देखना चाहता हूं मैं நான் உம்முடைய மகிமையை காண तेरे வாஞ்சிக்கிறேன். महिमा को देखना चाहता हूं कहता है वो உம்முடைய மகிமையை காண வாஞ்சிக்கிறேன். पढ़ेंगे निर्गमन की किताब யாத்திராகமம் 33वां अध्याय 23 18-20 पढ़ेंगे 18 से 20 23 இருந்து 33 18 20 18 வாசிங்க. हाँ हम्म 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 देखिए यहाँ पर देखिए मूसा के प्रभु का महिमा को देखना चाहता है. மோசே கர்த்தருடைய प्रभु மகிமையை मैं காண आपका महिमा வாஞ்சிக்கிறேன். देखना चाहता हूँ. உம்முடைய மகிமையை காண प्रभु ने कहा வாஞ்சிக்கிறேன். कि मैं मुझको देख के कुछ जिंदा नहीं रह सकता, அப்பொழுது என்னை பார்த்துவிட்டு ஒருவன் உயிரோடு இருக்க முடியாது. लेकिन मैं आके मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं अपना नाम को आके मैं आके ऐलान करूंगा, घोषणा करूंगा कहता है. நான் என்னுடைய நாமத்தை கூறுவேன். आके उसी आके अगला वचन अध्याय में देखते हैं. அதுக்கு அடுத்த அதிகாரத்தில் निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे हम. 34 34 5 6. 5 6 यहाँ पर प्रभु आके मूसा के साथ खड़ा है. அங்கே அவன் அருகில் நின்று हाँ 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 यहाँ पर देखिए एकदम साफ साफ तौर पर दिखता है. ரொம்ப தெளிவாக यहाँ தெரியும். पर मूसा के साथ प्रभु है மோசேயோடு கூட இருக்கிறார் தேவன். और कहता है कि प्रभु प्रभु अनुग्रहकारी रहम करके वो और एक प्रभु को आके दिखाई इशारा करता है. கர்த்தர் இரக்கம் கிருபையும் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் என்று சொல்லி. इसे ट्रिनिटी जो है, இந்த திருத்துவ ये जो कार्य जो है, இந்த காரியமானது ये आके कोई नया नहीं है न्यू टेस्टामेंट में. இது ஒன்றும் புதிய, அதாவது புதிய ஏற்பாட்டில் यूहन्ना के लिए कुछ नया कुछ चीज यूहन्ना नहीं बताता है. யோவான் ஒரு புதிய காரியத்தை यहूदी के लिए कुछ नई नहीं है. ये அது புதிய காரியம் அல்ல. एक ही चीज नहीं है. जैसे मैंने कहा, ஒரே காரியம். परमेश्वर कैसा औरत के पेट में पैदा हो सकता है, எப்படி தேவன் वो इसीलिए इसी कारण है कि वो यीशु को इनकार करते हैं. இந்த காரியத்தை தான் அவங்க जब ஏற்றுக்கொள்ளும். आके यीशु ने जब कहा कि जब आके जो हाई प्रीस्ट जो आके जाके पूछा कि तू सच सच कहे कि तू परमेश्वर का बेटा है क्या करके, जब यीशु से पूछताछ करता है, ஆனபடினால் தான் அவங்க இயேசுவினிடத்தில் கேட்கிறார்கள், நீர் உண்மையாகவே தேவனுடைய குமாரனா என்று. वो कहता हाँ मैं हूँ, நான் அவர்தான். लेकिन अब से तुम देखोगे இது முதற்கொண்டு परमेश्वर का जो मनुष्य का पुत्र தேவனுடைய குமாரன் बादलों पर सवार மேகத்தில் बादलों पर सवार மேகத்தில் उतरते हुए तुम देखोगे करके कहता है. மேகத்தில் வருவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். वो सुनते ही அதை वो கேட்டவுடனே महायाजक अपना कपड़ा फाड़ देता है. அந்த பிரதான ஆசாரியன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை ऐसा यीशु ने क्या कह दिया कि उसे कपड़े को फाड़ दिया. அப்படி என்ன சொல்லிவிட்டார்? आगे कोई पूछताछ की जरूरत नहीं, क्योंकि मरने का योग्य करके उसको बोल दिया. வேற எதுவுமே பேசாண்டாம், ஒரு மரணத்துக்கு. क्योंकि बादलों पर सवार होना जो कार्य जो है, बादलों पर सवार होना, மேகத்தில் வரக்கூடிய காரியம், द क्लाउड राइडिंग, மேகத்தில் வருது. या कि सिर्फ आके सच्चा परमेश्वर को दिया गया स्थान है. वो அது ஒன்லி उन्मैயான தேவனுக்கு மாத்திரம் सिर्फ தான். सच्चा परमेश्वर ही है जो आके बादलों पर सवार होके आ सकता है. உண்மையான தேவன் ஒருவரே மேகத்தில் வர முடியும். बाइबल में 4-5 जगह पे लिखा है, मैं नोट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 4-5 जगह पे लिखा है 4-5 இடத்தில் यहाँ पर எழுதப்பட்டிருக்கிறது. सच्चा परमेश्वर को बादलों के साथ संबंध किया गया है. உண்மையான தேவனே மேகத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. तो जब यीशु ने कहा कि बादल पर सवार होके आऊंगा करके, இயேசு மேகத்தில் வருவார் என்று சொன்ன உடனே वो चौंक गए. அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, ये अपने आप को प्रभु कहता है, இவர் தன்னை தேவன் என்று ये अपने आप को சொல்கிறார், यहोवा कहता है. தன்னை யெகோவா என்று சொல்கிறார். इसने गलत किया करके इसको मारना चाहिए करके தவறாக சொல்லிவிட்டார், இவரை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். हालेलुया. ஹalleluya. हम जो परमेश्वर को मानते हैं, நாம் நம்புகிற தேவன் वो सच्चा परमेश्वर है. அவர் उन्மை தேவன். इस बाइबल को आके विदाउट आके ट्रिनिटी के समझ ही नहीं सकते आप. நாம் திருத்துவத்தை அல்லாமல் அந்த வேதத்தை புரிய முடியாது. पिछले साल आके सुरेश ने मुझे फोन किया था, போன வருஷம் சுரேஷ், मुझे याद है, एक 7th डे एडवेंटिस्ट इसके पास आके बहस करने के लिए आया. 7th डे அட்வென்டிஸ்ட்காரர் ஒரு வந்து பேசினார். तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसा लोग आए, जरा आके बात करो करके मुझसे कहा. இப்படி சிலர் வந்திருக்காங்க, என்ன வந்து கொஞ்சம் பேசணும்னு ये சொல்லி. विल्सन इनके साथ बैठ के वो लोग बात कर रहे थे, छोटे बच्चे के साथ. சின்ன பையங்களோடு இருந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள்.
मैं आया, நான் வந்து सबसे पहला क्वेश्चन एक ही पूछा मैंने, நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन தான் உங்களிடத்தில் கேட்டேன். प्रभु का आप वो डिफाइन कैसे करते, प्रभु परमेश्वर को या प्रभु को आप किस तरह से उसको विवरण करते, पूछा मैंने. கர்த்தரை நீங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்துவீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டேன். वहां पर ही फंस गए लोग. அங்கே அவர்கள் மாட்டி கொண்டார்கள். उनका कहना है அவர் சொன்னார், परमेश्वर जो है தேவனானவர் एक ही परमेश्वर अपना को पिता करके दिखाता है, ஒரே தேவன் தன்னை பிதா என்று एक சொல்லுகிறார். ही परमेश्वर अपने को बेटा करके दिखाता है, ஒரே அதே தேவன் தன்னை குமாரன் एक ही परमेश्वर को पवित्र आत्मा करके दिखाते हैं करके. ஒரே தேவன் பரிசுத்த ஆவி என்று Which is சொல்லுகிறார். absolutely wrong. அது முற்றிலுமாக தவறு. जिसे मॉडलिज्म कहते हैं. एक ही परमेश्वर जो है ஒரே தேவன் पिता करके कुछ वक्त, பிதா என்று சொல்லி, फिर बेटा करके குமாரன் என்று சொல்லி, या पवित्र आत्मा करके दिखाता இல்லை है. என்றால் பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லி. Absolutely wrong. அது முற்றிலும் वहां தவறு. पर ही फंस गए. அங்கே அவர் மாட்டிக்கொண்டார். मैंने उनको साबित किया நான் அவருக்கு ऐसा हरगिज ही नहीं है करके. அது ஒருபோதும் मैंने முடியாது. कुछ वचन को, इसी वचन को उनको दिखाया तो நான் இந்த वचनங்களில் அவர் காண்பித்த போது वो लोग खामोश रह गए. அவர்கள் அமைதியாக उनके இருந்தார்கள். पास शब्द ही रहा नहीं. அவருக்கு मैं பேச इनको बोले कि तुम बोलते एक ही परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा दिखाता है करके, பிதா ये क्या है, दो குமாரன் ஒரே परमेश्वर. ஆளை குறித்து यहाँ पर एक आसमान पे यहोवा, यहाँ पर धरती पे यहोवा है, कौन है वो? மேல ஒரு யெகோவா கீழ ஒரு யெகோவா, அது யாருன்னு சொல்லு. क्या है, दो व्यक्ति कौन है? அந்த ரெண்டு व्यक्ति யாரு? नहीं दे पाया. அவர்கள் எதுவும் பதில் கொடுக்க முடியவில்லை. जो आके जो डिनोमिनेशन, जो कलीसिया எந்த சபையோ त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता திருத்துவத்தை और நம்பவில்லையோ, त्रिएक परमेश्वर को ठीक सिखाता नहीं, திருத்துவத்தை கற்றுக் கொடுக்கவில்லையோ, वो आके शैतान का कलीसिया है. அது சாத்தானுடைய वो கையில். शैतान चलाता है उन्हें. அது சத்ரு அதை நடத்துகிறார். யெகோவா விட்னஸா இருக்கட்டும், ओनली जीसस हो या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो, ये शैतान के द्वारा चलाया गया कलीसिया है. उनसे बचे रहिए. அதிலிருந்து விலகி இருங்க. हमको जो जो उपदेश हम जो रखे हैं, நாம் வச்சிருக்கிற हम உபதேசம், पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को आके मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनका इकरार करते हैं. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்புகிற हमारा मानना यह है कि परमेश्वर एक ही है, நம்முடைய தேவன் ஒருவரே. लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन अलग व्यक्ति है. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி மூவரும் தனி நபர்கள். एक ही नेचर, एक ही स्वभाव, एक ही सब्सटेंस है, ஒரே நேச்சர், ஒரே சுபாவம் தான். लेकिन तीन अलग व्यक्ति है. ஆனா மூவரும் தனித்திருக்கிறார்கள். वो खुद आके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक ही मिलकर एक कार्य को करते हैं. அவர்கள் தனியாக சிந்திக்கலாம், செயல்படலாம், ஆனா மூவரும் சேர்ந்து அந்த காரியத்தை जैसा செய்கிறார்கள். बाप मुर्दों को उठाता है, பிதாவானவர் மரித்தோர் எழுப்புவது போல वैसे ही बेटा भी उठाता है. அப்படியே குமாரனும் மரித்தோர் எழுப்ப முடியும். एग्जैक्ट जैसा बाप करता है, எப்படி பிதா செய்கிறார், बेटा भी करता है. அப்படியே குமாரன் செய்கிறார். मैं पिता के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता कहता है நான் प्रभु. பிதாவை இல்லாமல் ஒன்றும் ये செய்ய முடியாது. अकेला इंडिविजुअली कोई भी त्रिएक परमेश्वर नहीं कर सकता, अपना मनमानी नहीं कर सकता. எந்த ஒரு தனிமையாக தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்கள் செய்ய முடியாது. यीशु को जब उठाया, இயேசு அவரை எழுப்பும் போது आके पिता भी उठाया उन्हें, பிதாவும் அவரை எழுப்பினார், खुद यीशु भी अपने आप को मुर्दों में से उठाया, கிறிஸ்துவும் और எழும்பினார், पवित्र आत्मा भी यीशु को मुर्दों में से जी उठाया. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை They எழுப்பினார். were in perfect harmony. மூவரும் वो ஒன்றாக एक ही कार्य करते हैं, ஒரே दोनों காரியம் एक से செய்கிறார்கள். एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं. மூவரும் அன்பா और तीनों இருக்கிறார்கள். को फीलिंग्स है, மூவரும் உணர்கிறார்கள், तीनों समझ सकते हैं. அவர்கள் புரிந்து கொள்ள पवित्र முடியும். आत्मा में आके समझता है, वो भी नाराज हो जाता है. அவர்களும் துக்கப்படுகிறார்கள். इस कार्य का आके ठीक तरह से समझना है, இந்த காரியத்தை நாம் சரியாக और உணர வேண்டும். इस संदेश को आप अच्छी तरह ध्यान कीजिए. இந்த ये कार्य के ये कार्य जो है जो मैं बता रहा हूँ, இந்த காரியம் நான் சொல்லுகிறேன். जो विटनेस हो, யெகோவா விட்னஸ் ओनली जीसस हो, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हो, ये तीनों को एक ही पत्थर से हवा गिरा सकते हैं. இந்த மூவரையும் ஒரே கல்லினால் விழ தள்ள முடியும். आगे हम आगे इस कार्य को हम देखते हैं. अभी நாம் இந்த காரியத்தை परमेश्वर का जो कार्य जो है, தேவனுடைய उसके காரியம் नाम में उसका नेचर को दिखाता है. அவருடைய பேரில் அவருடைய தன்மையை காணப்படும். कि जो बाइबल में कई नामों को जो दिया गया है, வேதத்தில் अनेक नाम के नेचर को स्वभाव को रख कर दिया गया है. அவருடைய நேச்சருக்கு அவருடைய சுபாவம், फॉर एग्जांपल ईसा करके नाम दिया गया है. ईसाक என்று ईसा का मतलब हंसना. ईसाक என்றால் சிரிப்பவர். क्योंकि सारा को जब बोला कि मतलब एक बेटा पैदा होगा, உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் என்று சொன்னபோது तो वो हंसी, சிரித்தாள். तो उसको स्वभाव के उस परिस्थिति के हिसाब से नाम रखा करके देखते हैं. அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கவர் அங்க பேர் வைக்கப்பட்டது. इसे आके जब नाम जो देखते हैं, नाम என்று उसके कैरेक्टर को दिखाता है, தன்னுடைய தன்மையை उसका नेचर
नेचर को दिखाता है, தன்மை उसका வெளிப்படுத்துகிறார் एट्रीब्यूट को दिखाता है। அவருடைய நடைமுறையை इसे कुछ है कि एट्रीब्यूट कम देखेंगे हम, அவருடைய செயல்பாடுகளை நாம் ठीक है। इंसान में यहोवा को कुछ एट्रीब्यूट के साथ यानी कि उसका नेचर के साथ जुड़ा करके देखिए। அவருடைய செயல்பாடு அவருடைய தன்மையை கொண்டு சொல்லுகிறார்। पहले हम देखेंगे और उसका पहले हम देखेंगे அது முதல் பார்க்கலாம் यहोवा जायरा करके नाम रखा है करके देखते हैं। ஜெகோவா ஜைரே और यहोवा ईरे का यहोवा ईरे करके देखते हैं। ஜெகோவா ஈரே என்று சொல்லப்படுகிறது। उत्पत्ति किताब ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 22वां अध्याय 23ஆம் அதிகாரம் 14 वचन को पढ़ेंगे। 14 வாசிங்க. देखिए यहाँ पर आके प्रभु आके यहाँ पर अब्राहम आके प्रभु के नाम देता है, கர்த்தர் அங்கே பேரை கொடுக்கிறதை பாருங்க। आके यहोवा ईरे करके नाम देता है। யெகோவா ஈரே என்று சொல்லி जब ईसाक पूछा कि बकरी बलि के लिए बकरी कहाँ है, भेड़ कहाँ है करके, बकरी कहाँ है करके, ஈசாக்கு ஆடு எங்கே என்று சொல்லி प्रभु आके देख ले, प्रभु के पहाड़ में देखा जाएगा करके। கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து भजन संगीतकार कई बार आके जो पहाड़ अपने आप को आके कि मैं अपने आके कई बार आके पहाड़ का वर्णन करता है भजन संगीतकार। संगीतकार अनेक मुறை मலை குறித்து कि वर्णिக்கிறார்। पहाड़ जब कहते हैं மலை என்று சொல்லும் पहाड़ मतलब जहाँ पर प्रभु स्थान निवास करता है। மலையில் தேவன் வாசம் செய்கிறார்। आदिन बाग जो कि पहाड़ पर स्थित है, आदिन बाग ஆதேன் பால் என்பது एदेन तोटम, ஏதேன் தோட்டம் एक पहाड़ पर स्थित है। वो அது ஒரு மலையில் இருந்தது। वो एसेकिएल किताब में पढ़ के देख सकते हैं। அது எசேக்கியேல் புத்தகத்தில் आगे पहाड़ का मतलब यह है कि पहाड़ पर जहाँ पर प्रभु निवास करता है, மலையில் தேவன் வாசம் जहाँ पर पहाड़ पर इंसान नहीं रह सकता। மலையில் மனிதன் இருக்க முடியாது। इसलिए एकांत एक आइसोलेटेड जगह पर प्रभु आके निवास करता है। அப்படிப்பட்ட இடத்தில் தேவன் तो வாசம் प्रभु जब भजन संगीतकार ये कहता है भजन संगीतकार कि मैं अपनी आंखें நான் என்னுடைய கண்களை पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, மலை पहाड़ பர்வதத்தை நோக்கி ஏறெடுக்கிறேன், जहां से मेरी कुंभक मेरी मदद आएगी के कहता है। அங்கிருந்து எனக்கு உதவி வரும் என்று சொல்கிறார்। भजन संगीत 18:2 में, भजन संगीत 18:2 में 15 संगीतम 18 वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है कहता है। கர்த்தர் என் கன்மலை என்கிறார்। तो कई बार के भजन संगीतकार के प्रभु को पहाड़ के साथ जोड़ता है, देखते हैं वो। अनेक मुறை கர்த்தரை அதாவது பர்வதத்துக்கு சமமாக்குகிறார்। भजन संगीत 62:2 को पढ़ेंगे हम। சங்கீதம் 63 62:2 वही मेरा चट्टान है, मेरे पहाड़ है करके वो यहाँ पर भजन संगीतकार कहता है। அவர் என் கன்மலை என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம்। प्रभु के पहाड़ पे देखा जाएगा, கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து जब प्रभु निवास करता है। கர்த்தர் அங்கே வாசமாய் प्रभु जब सब कुछ देखता है, அவர் அங்கிருந்து எல்லாவற்றையும் प्रभु देख लेगा। கர்த்தர் பார்த்து हमारे आंसू को देखता है प्रभु, हमारे दुखों को देखता है, हम किस परिस्थिति से गुजरते प्रभु देखता है। எந்த சூழ்நிலையில் கடந்து செல்கிறோம் என்பதை அறிவார்। हम भी अब्राहम के जैसा कहे, நாம ஆபிரகாமை போல சொல்லுவோம், यहोवा जायरा, யெகோவா ஜீரே, प्रभु देख लेगा। கர்த்தர் பார்த்துக்கோ, मैं इस तकलीफ में हूँ, எந்த கஷ்டம், मैं परेशानी में हूँ, எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும், मैं इस मुश्किल में फंसा हूँ, நான் இந்த பிரச்சனையில் மாட்டி இருக்கிறேன், यहोवा जायरा கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார்। प्रभु यीशु के पहाड़ पर आके पहाड़ पर जाकर கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மலையில் கடந்து சென்று एक प्रभु के लंबा एक प्रचार करता है, जिसे कि इस प्रकार के पहाड़ी संदेश कहते हैं। अத மலை பிரசங்கம் என்று சொல்லி அவர் उसमें प्रभु कहता है कि तुम आके किसी बात की चिंता ना करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या क्या पहनोगे करके। என்னத்தை குடிப்போம், என்னத்தை புசிப்போம் என்று சொல்லி கவலைப்படாதீர்கள்। पहाड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु ने आके संदेश दिया कहते हैं। அந்த மலை பிரசங்கத்திலே ஆண்டவர் இப்படி பேசுகிறதை पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय 25 को पढ़ेंगे। மத்தேயு 6:25 31 हमारा प्रभु परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है करके। நம்முடைய தேவன் அறிந்திருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவை என்று हमको क्या खाएंगे, क्या पे करके हम उसके बारे में चिंता ना करें। என்னத்தை உண்போம், என்னத்தை प्रभु जानता है कि हमें क्या जरूरत है करके प्रभु के पहाड़ पर देखा जाएगा। நமக்கு என்ன தேவை என்று கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே पहाड़ पर जहाँ पर प्रभु निवास करता है, கர்த்தர் மலையில் उसका आसमानी पहाड़ जो है कि पवित्र पहाड़ पर निवास करता है, वहां से हमको मदद आएगी।
பர்வதத்திலிருந்து எனக்கு உதவி வரும் என்று प्रभु சொல்கிறார். यीशु ने 72 चेलों को भेजा सेवा के लिए। இயேசு தம்முடைய 72 சீசுகளை जाओ அனுப்பினார். आके चंगा करो, रोगी को अच्छा करो, आके तुमको फ्री में मिला, तुम फ्री में सबको दो करके प्रभु ने भेज दिया। अनेकரை சுகமாக்குங்கள், जाने के वक्त कुछ भी मत लेके जाओ कह दिया। புசிப்பதற்கு ஆகாரம் எதுவுமே ना கொண்டு लाठी போக लेकर जाओ, ना थैला, ना पैसा, कुछ भी लेकर मत जाओ। ஒரு தடியோ பையோ எதுவுமே கொண்டு वो போக 70 लोग आगे, सब लोग खुशी खुशी आए प्रभु के पास। அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு 72 பேர் प्रभु ने வந்தார்கள். से एक पूछा, அவள் ஒருவர் கேட்டார், तुम आके सेवा में गए थे, நீங்கள் ஊழியத்துக்கு तुमको போனீர்களே, कुछ किसी चीज से कमी हुई थी क्या? உங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்ததா? ना थैला था, ना पैसा था, ना लाठी थी, कुछ चीज की कमी हुई थी क्या? உங்களுக்கு தடியோ இல்லை என்றால் ஒரு பையோ எதுவுமே கிடையாது. நீங்க कुछ உங்களுக்கு भी नहीं प्रभु, ஒன்றுமே குறை, कुछ कमी नहीं हुई हमकी। எந்த குறையும் எங்களுக்கு यहोवा जाएगा, एक கர்த்தர் प्रभु देख लेगा। प्रभु के पहाड़ों पे देखा जाएगा। கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் प्रभु ने 2 मछली लेकर 5 रोटी लेकर 5 आलू को खिला देते हैं। 2 மீன்களை 5000 பேருக்கு பங்கிட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். कोई कमी नहीं होगी, எந்த குறையும் उसको ढूंढ कर आने को प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता देखते हैं। அவரை தேடி வருகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மை के पर्वतों पर देखा जाएगा, प्रभु देखता है। பர்வதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளப்படும்। लूका किताब 22:35 को पढ़े। லூக்கா 22 नहीं लूका नहीं, फिलिपियर 4:19 को पढ़े। பிலிப்பியர் 4:19 प्रभु अपने सारे जो किए जो अनुग्रह से क्या अपने सारे जरूरतों को पूरा करेगा करके प्रभु ने कहा है। தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி தம்முடைய குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குவார் என்று जो 5 रोटी 2 मछली को लेकर अगर 5000 को खिला सकता है तो 5 அப்பம் 2 மீன்களை கொண்டு 5000 பேரை போஷிக்க முடியுமானா क्या हमें हमारा पालन पोषण करने के लिए क्या उसको मुश्किल है क्या? நம்மை போஷிப்பதற்கு அவருக்கு கடினமா? वो क्या हमको हमारे बारे में नहीं जानता है क्या? நம்மை குறித்து அவருக்கு தெரியாதா? के पहाड़ में देखा जाएगा। ஆனபடினால் கர்த்தருடைய उस कलवरी पहाड़ पर अपना जीवन को देखकर प्रभु ने हमारे सब कुछ करके रखा करके கர்த்தராகிய ஆண்டவர் परमेश्वर का सच्चा மலையிலே தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து எல்லாவற்றையும் செய்து परमेश्वर का सच्चा मेमना जो आके कलवरी पहाड़ पर आके आके प्रभु ने हमारे लिए आके दिया देखते हैं। கர்த்து அந்த அதாவது கர்த்தருடைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் நமக்காக கன்மலையிலே பலியாக वो हमारे लिए सबको तैयार करके रखा है। அங்கே நமக்கு हमारे उद्धार को करके तैयार करके रखा है। நமக்கு ரட்சிப்பை हमको सब कुछ पहाड़ पर के मुहैया हमारे लिए तैयार करके रखा के देखते हैं। அங்கே கொல்கதா மலையிலே எல்லாவற்றையும் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி वही है जो प्रभु का यहोवा यीरे है। அவர்தான் யெகோவா ஈரே वो कि हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। वो நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்ய हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे हम फिक्र ना करें। என்னத்தை குடிப்போம் என்னத்தை प्रभु अपने वक्त पर उस कार्य को पूरा करेगा। தேவன் தம்முடைய சரியான வேளையிலே எல்லாவற்றையும் செய்வார்। दूसरा कोरिन्थियस 9वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। 2 கொரிந்தியர் 9:8 வாசிக்கலாம்। तो पर हर तरह का अनुग्रह कसरत से कहे ताकि तुम्हें हमेशा हर चीज की तौर पे पूरा मिले करके बल्कि दूसरे की मदद भी करने तक के प्रभु में आशीष करने के लिए सामर्थ्य करके यहाँ पर लिखा देखते हैं। தேவன் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ண உடையவளாயும் சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகவளாயும் இருக்கும்படி தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையும் பெருகச்சே வல்லவராய் இருக்கிறார்। वो अगर सामर्थ्य हमारे सारे कार्य को पूरा करने के लिए அவர் தேவन हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। वो நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திப்பதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார்। दूसरा हम देखते हैं कि उसका नाम के गुण को और एक के नाम जोड़ा गया है। அவருடைய பேருக்கேற்ற ஒரு குணம் அதை அங்கே वो है कि यहोवा राफा करके देखते हैं। यहोवा राफा என்று சொல்வார்। यहोवा रोफेका करके देखते हैं। यहोवा रोफेका என்று சொல்வார்। निर्गमन की किताब यात्रागमத்தின் पुस्तகம் 15 अध्याय 15ஆம் அதிகாரம் 26 वचन को पढ़ सकते हैं। 24 அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து என்னத்தை குடிப்போம் என்றார்கள். மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். 15:26 நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்.
मैं ही जो परमेश्वर जो तेरा चंगा करने वाला के प्रभु ने यहाँ पर कहा है, நானே உன்னை குணமாக்குகிறவர். वही है कि हमारे यहोवा राफा है, அவர்தான் யெகோவா ராஃபா. वही हमें चंगा करता है। அவரே நம்மை पहले हमें अपने 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 पाप से रोग से हमें चंगा करता है वो। நம்முடைய ரோகம் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் भजन संगीत 103:3 को पढ़ेंगे हम। சங்கீதம் 103:3 हमारे पहले पाप के रोगों को आके चंगा करता है। அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நம்ம ரோகங்கள் எல்லாவற்றையும் हम आके पापों में आके एक जमाने में थे, நாம் ஒரு பாவத்தில் ஒரு पाप के रोग में थे हम। பாவத்தின் ரோகத்தில் प्रभु ने आके हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाकर प्रभु ने हमें उस पाप के रोग से चंगा किया, देखते हैं। அந்த பாவ ரோகங்களை நம்மை விட்டு அகற்றினார். यशाया 53:5 को पढ़ेंगे। எசாயா 53:5 यहाँ पर देखिए, हमारे ही आके जो ताड़ना के वजह से, हमारे आके जो उल्लंघन के वजह से ये जो सजा जो है उसको आया, देखते हैं। நம்முடைய மீறுதல் நம்முடைய எல்லா நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார். हम आके उस पाप के जो गलती की, हमने जो गुनाह किए, நாம் அக்கிரமம் பண்ணினோம், उसका सजा के परमेश्वर के बेटे को मिला, देखते हैं। அவர் நொறுக்கப்பட்டார், वो आके कुचला गया, देखते हैं। அவர் நொறுக்கப்பட்டார், और उसके कुचले जाने से हम चंगा पाया करके देखते हैं। அது நிமித்தம் நமக்கு நாம் சுகம் அடைகிறோம். प्रभु हमें पहले अपने रोग से, पाप के रोग से चंगा करता है हमें। அவர் நம்முடைய பாவ சாபங்களை நம்மை விட்டு और அகற்றுகிறார். दूसरा कि प्रभु हमारे टूटे दिलों को चंगा करता है, देखते हैं। நம்முடைய உடைந்த உள்ளங்களை அவர் குணமாக்குகிறார். भजन संगीत 147:3 को पढ़ेंगे हम। भजन संगीत 147:3 वो हमारे टूटे हुए दिलों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। நொறுங்குண்ட இருதயத்தை அவர் குணமாக்குகிறார். अपने वचन से भेज कर में चंगा करता है। நம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி அவர் குணமாக்குகிறார். हमारे टूटे हुए मुरझाए हुए दिलों को चंगा करने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। உடைந்த நம்முடைய உள்ளத்தை அவர் குணமாக்க அவர் हाँ, इंसान के कोई भी वचन से, बातों से हम आके वो चंगा नहीं पा सकते हैं। மனிதனுடைய எந்த வார்த்தையினாலும் அந்த சுகம் கிடைக்காது. वो आके अपने वचन को भेज कर में चंगा करता है। அவர் தம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி நம்மை भजन संगीत 107:20 को पढ़ेंगे हम। वो अपने वचन को भेज कर में चंगा करता है। அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி நம்மை इससे जब कलीसिया मिलता है, சபை கூடும்போது आके जरूर आके कलीसिया का आना चाहिए हम। நாம் சபையில் परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें करते हैं, நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பேசும்போது अपने वचन से हमें चंगा करता है। அவர் தம்முடைய வசனத்தை अपने टूटे हुए उस दिल को अपने वचन से वो मरहम लगाता है। நம்முடைய உடைந்து போன உள்ளத்தை தம்முடைய வசனத்தை கொண்டு, कई बार वचन से हमें डांट कर में सुधारता है, வசனத்தை கொண்டு நம்மை कई बार वचन से हमें मारता है, நாம் கடின உள்ளங்களை உடைக்கிறார். हमें वचन से कई बार मारता भी है, வசனத்தை கொண்டு நம்மை அடிக்கவும் हमें मारता है इससे ताकि हम चंगा पाए। நாம் குணமடைவதற்கு कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते ताकि हम जीएम चंगा पाए। டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்றது எதுக்காகனா நாம் வாழ்ந்திருப்பது. अय्यूब की किताब 5वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे हम। யோபு अय्यूब 5:18 5:18 वही मारता है, वही आके मरहम लगाता है, அவர் அடிக்கிறார், அவரே குணமாக்குகிறார், वही आके पट्टी बांधता है। அவர் அதை காயம் कई बार आके प्रभु के में मारता भी है। கர்த்தர் अनेक बार अडिक्கிறார். हम कई बार देखते माएँ जो होते हैं अपने बच्चे को मारते हाथ पैर मारते रहते हैं, मारते हैं। நாம் பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கிறோம் அல்லவா, ये थोड़ा देर के बाद மற்ற கொஞ்ச நேரத்திலே उनको लाड करते हैं, அவரிடத்தில் மறுபடி செல்லுங்க, उसे प्यार करते हैं। அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம். कहाँ पर सुझाव होगा तो उनको मरहम लगाते हैं। எங்க அங்க अरे बेटा यहाँ पर लग गया क्या, सूजन लगाए, मरहम लगाते हैं। அங்கே நாம் என்ன वही செய்கிறோம், परमेश्वर का दिल है। அதுதான் हमें मारता है, அவர் அடிக்கிறார், हमें डांटता है, நம்மை கடிந்து கொள்கிறார், और उसका हाथ में मरहम लगाता है। அவர் தம்முடைய கரத்தினால் மலம் போடுகிறார். वही हमारा यहोवा राफा है, அவரே நம்முடைய யெகோவா वो ராஃபா, चंगा करने वाला परमेश्वर है। அவர் நம்மை குணமாக்குகிறார். यिर्मयाह ऐसा प्रार्थना करते हैं, यिर्मयाह எரேமியா இவ்விதமாய் ये प्रभु சொல்கிறார், तो मुझे चंगा कर, கர்த்தாவே என்னை तब குணமாக்கு, मैं चंगा पाऊंगा। அப்பொழுது நான் तू சுகமாகுவேன். मुझे बचा, तब मैं बचूंगा, कहके यिर्मयाह 17:14 में लिखा है। என்னை ரட்சியும், அப்பொழுது நான் ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று சொல்கிறார். यहाँ पर प्रार्थना करते, प्रभु तुम मुझे चंगा करते, मैं चंगा पाऊंगा करके। நீர் என்னை சுகமாக்கும், அப்பொழுது நான் यहाँ சுகமடைவேன். पर ऐसे क्या क्या कार्य को देखते हैं हम, ऐसे क्या राजा का எசேக்கியா ராஜாவின் காரியத்தை பார்க்கிறோம். आके प्रभु का वचन उसके पास आया, ईशा के पास। வார்த்தை तो எசேக்கியாவின் பாஸ் तो कह दे मेरे ऐसे क्या की तरह दिन खत्म पूरा हो चुका है, अपने घर को बंदोबस्त कर देना। வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து என்று சொன்னார்.
उसने अपने दीवार की तरफ मुंह फेर के அவர் செவருபுறமாக திரும்பி बिलक बिलक कर रोके, கண்ணீர் விட்டு அழுதார். ये प्रभु मुझे याद फरमा तू, கர்த்தாவே என்னை நினைத்தருளும், मुझे याद कर तू, என்னை நினைவு मैं கூரும். कैसे सच्चे दिल से तेरे पीछे पैरवी की, விதமாய் உண்மையாக मैं இருந்து पूरे दिल से आके तेरे पैरवी की, முழு மனதோடு உம்மை मुझे சேவித்தேன். याद फरमा. प्रभु ने उसकी आंसू को देखा, கர்த்தர் அவருடைய கண்ணீரை उसके கண்டார், प्रार्थना को सुना. அவருடைய ஜெபத்தை கேட்டார். ऐसे क्या कि जिस तरीके से प्रार्थना किया எசேக்கியா எவ்விதமாய் ஜெபித்தாரோ वैसे हम भी प्रार्थना करें. அப்படியே நாமும் प्रभु ஜெபிப்போம். मुझे याद फरमा, கர்த்தாவே என்னை நினைவு கூரும், आके मुझे याद फरमा करके ऐसे क्या जब आके प्रभु से प्रार्थना किया, என்னை நினைவு கூரும் என்று அவர் ஜெபித்த போது उसके प्रार्थना को ऐसे क्या प्रार्थना को प्रभु ने सुना. எசேக்கியாவுடைய ஜெபத்தை उसके उम्र के 15 साल बढ़ा कर दिया. देखते அவருடைய हैं ஆயுசு நாட்கள் 15 வருடம் கூட்டப்பட்டது. हमारे बीच में जोसेफ कैनेडी का सब पता होगा, ஜோசப் கனடி என்ற நம்முடைய சகோதரனை குறித்து உங்களுக்கு एलिस தெரியும். सिस्टर का भाई. எழில் சிஸ்டருடைய சகோதரர். कोई गुंजाइश नहीं था जिंदा रहने का, அவர் பிழைப்பார் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் 1% भी चांस नहीं था कि जिंदा रहेगा करके. அவர் பிழைப்பார் என்கிற எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை. 90% ब्लॉकेज. 90% அது பிளாக்கா இருந்தது. लेकिन मैं सुना कि वाक्य प्रभु से प्रार्थना करके अपने पाप को कबूल किया उसने. தன்னுடைய பாவத்தை उसने அறிக்கையிட்டு प्रभु से प्रार्थना அழுதார், किया, रो के प्रार्थना किया करके. அழுது ஜெபித்தார். प्रभु ने बड़ाई करके आजादी दी, கர்த்தர் அவருக்கு उसकी ஆயுசினாலே जान को बचाया, அவருடைய உயிரை उसकी காப்பாற்றினார். उम्र को बढ़ा कर दिया. அவருடைய ஆயுசினாலே प्रभु आज भी करने के लिए सामर्थ्य है, அவர் आज भी चंगा करने की அவர் सामर्थ्य है. இப்போதும் அவர் குணமாக்க हम में से कई लोग अब तक जिंदा है तो இப்பொழுது நாம் உயிரோடு இருக்கோம் என்றால் प्रभु का अनुग्रह है. அது தேவனுடைய கிருபை. पौलुस को प्रभु ने चंगा नहीं किया, பவுலை கர்த்தர் குணமாக்கவில்லை. मेरा अनुग्रह काफी है. என் கிருபை உனக்கு हम में से कई लोग अगर जिंदा है बचे हैं तो நாம் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கோம். प्रभु का अनुग्रह है करके देखते हैं. प्रभु का अनुग्रह है जो हमें अभी तक बचा के रखा के देखते हैं. கர்த்தருடைய கிருபையினால் நாம் பிழைத்து இருக்கிறோம். हालेलुया. ஹalleluya. आज यिर्मयाह किताब 30वां अध्याय 17 वचन. प्रभु ने एक वादा किया है, எரேமியா 30वां अध्याय 17 वचन. 30ஆம் அதிகாரம் 17. हालेलुया. प्रभु ने यहाँ पर वादा किया है. கர்த்தர் வார்த்தை ये वादा को लेकर प्रभु के सामने वाक्य प्रार्थना करे, நம்ம வாக்கை பிடித்து प्रभु से நாம் पुकारे. ஜெபித்தால் அவரை கூப்பிட்டால் प्रभु ने आपने कहा है அவர் நமக்கு சொல்லி कि இருக்கிறார். फरमाते कि क्योंकि उन्होंने कहते तुझे तंदुरुस्त और तेरे जख्मों को शिफा को बांधो, प्रभु ने कहा है. உன்னை ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். और जिसे कहते कि सियोन तो कि तू आके जिस प्रकार के हटावा आके इस प्रकार के हटाया हुआ पत्थर है करके, அதாவது தள்ளப்பட்ட கல் என்றும் तुझे मैं चंगा करूंगा, तुझे मैं शिफा दूंगा, प्रभु ने कहा है. तुझे तंदुरुस्त करूंगा, प्रभु ने कहा है. உனக்கு உன்னை விடுதலை प्रभु ने वादा किया तंदुरुस्त करूंगा तुझे मैं, கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிற உன்னை நான் तुझे मैं चंगा करूंगा करके तंदुरुस्त करूंगा, प्रभु ने वादा किया है. உன்னை குணப்படுத்துவேன். इस वचन को लेकर प्रभु से हम प्रार्थना करें. हम நாம் கர்த்தரிடத்தில் प्रभु मेरे कमजोरी को दूर करे, கர்த்தர் என்னுடைய பலவீனத்தை क्योंकि மாற்றும். तू यहोवा राफा है, நீ யெகோவா ராஃபாவா तू இருக்கிற. आके मेरे चंगा करे परमेश्वर तू ही है. हे प्रभु तू चंगा कर तब मैं चंगा होऊंगा. ऐसे क्या जैसा प्रभु से हम आके पुकार के प्रार्थना कर, आंसू से प्रार्थना करे, प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करेगा. हालेलुया. तीसरा हम देखते हैं प्रभु को यहोवा शालोम करके उसके खूबी को दिखाता है. यहोवा शालोम करके प्रभु को शांति करके देखते हैं. न्याय की किताब நியாயாதிபதிகள் 6 अध्याय 6ஆம் அதிகாரம் 24 वचन को पढ़ेंगे हम. 24ஆம் वचனம். यहाँ पर डरा हुआ घबरा हुआ जो गिदियोन जो है, कलंगी पोना गिदियोन आके मैंने प्रभु के परमेश्वर के फरिश्ते को देखा, जब आके डर गया था. கர்த்தருடைய தூதனை கண்டு பயந்து போனார். अरे मैं तुम्हें मर जाऊंगा. நான் இறந்து போவேன். प्रभु ने कहा शांति हो.
கர்த்தர் சொல்கிற तू नहीं சமாதானம், तू नहीं मरेगा। நீ சாக यहाँ மாட்டாய். पर इस प्रकार को एक नाम देता है यहोवा शालोम करके, அவர் இங்கே சொல்லுகிறார் யெகோவா சாலோம் वो என்று शांति का சொல்லுகிறார். प्रभु है। அவர் प्रभु यीशु का சமாதானத்தின் यीशु का कई नामों से और एक नाम है शांति का राजकुमार करके। தேவன். இயேசுவுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு, சமாதானத்தின் தேவன். अब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து दुनिया போகிறேன். देती है वैसे शांति, बल्कि मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूँ। உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமா இல்லை, என்னுடைய तुम्हारा मन சமாதானம் ना घबराए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। உங்கள் மனம் கலங்காமலும் दुनिया में திகையாதிருக்கிறதாக. मुसीबतें हैं, எந்த பிரச்சனைனாலும் दुनिया में मुसीबतें हैं, இந்த உலகத்தில் தொல்லைகள் प्रभु உண்டு. ने गारंटी नहीं दिया कि मुसीबतें नहीं होगी करके। இங்கே துன்பங்கள் வராது என்று அவர் சொல்லவில்லை. प्रभु ने कहा मुसीबत है, துன்பங்கள் உண்டு, लेकिन मुसीबत में तुमको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। அதன் மத்தியில் நான் உங்களை விட்டு போக तुम्हारी மாட்டேன். मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ हूँ, உங்கள் துன்பத்தின் மத்தியில் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். शांति देने के लिए, உங்களுக்கு अपनी சமாதானத்தை शांति देने के लिए। என்னுடைய சமாதானத்தை தருவேன். कितनी भी तकलीफ हो, எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கட்டும், कितने प्रॉब्लम्स हो, எந்த பிரச்சனை இருக்கட்டும், रात को नींद अच्छी आती है, நமக்கு எந்த ராத்திரியில நமக்கு நல்ல தூக்கம் வரும். हर तरह का स्ट्रेस सब सर पे, பல டென்ஷன் இருக்கலாம், लेकिन रात को जो है ராத்திரியிலே प्रभु शांति से हमें सुन देता है। நமக்கு சமாதானத்தோடு நம்ம தூங்க ये प्रभु की शांति है। இதுதான் தேவனுடைய ये भजन संगीतकार भी कहता है, இதுதான் भजन சங்கீதக்காரர் संगीत का சொல்லுகிறார். 4 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे हम, சங்கீதக்காரர் 14 4:8। 4:8 வாசிக்கலாம். मैं सलामती से सोऊंगा करके कहता है, சமாதானத்தோடு படுத்து நித்திரை செய். मैं आके सलामती से लेट जाऊंगा और आके सो रहूंगा करके कहता है। भजन संगीत 4:8। சமாதானத்தோடு படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன், கர்த்தாவே நீர் என்னை ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுங்க. दाऊद के चारों तरफ दुश्मन है, தாவீதுக்கு நாலு பக்கம் उसके खुद के परिवार के लोग दुश्मन हो गए, அவருடைய உறவினர்களே आसपास के जो मुल्क है उसके खिलाफ हो गए, சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள எல்லாரும் அவருக்கு सॉल भी उसको दुश्मन बन गया। சவுலும் எதிரியா ये இருக்கிறார். सब होने के बावजूद भी இது எல்லாம் ஆன பிறகும் यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, தாவீது என்ன मैं சொல்லுகிறார்? शांति से लेट जाता हूँ। ஆனால் சமாதானத்தோடு ये है प्रभु की शांति। இதுதான் ये தேவனுடைய शांति है कि हमारे इंसानी शब्द से वर्णन नहीं कर सकते, இது எந்த ஒரு மனிதனும் इंसानी भाषा से उसे अब आके विवरण नहीं कर सकते। யாரும் அதை வெளிப்படுத்த முடியாது. फिलिपियंस 4 अध्याय 7वां वचन, பிலிப்பியர் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். जो खुदा का जो शांति जो है, பிதாவினுடைய அந்த जो சமாதானம் समझ के बिल्कुल बाहर है, அது மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, हमारे समझ के बाहर है, நம்ம எல்லாருடைய அதாவது புரிந்து கொள்வதற்கு மேலாக वो शांति அந்த சமாதானம் आके ऊपर विश्वास करने वालों को देता है। அது தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறார். वो शांति जो आके कोई हमसे छीन नहीं सकता। அதை யாரும் நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள वो முடியாது. शांति का राजकुमार जो हमारे साथ है, அந்த சமாதானத்தின் वो தேவன் நம்மோடு கூட वो இருக்கிறார். चेले आके डरे हुए घबराए रूम में बंद दरवाजे में थे। அவருடைய சீசர்கள் பயந்து ஒளித்து ரூமுக்குள்ள இருந்தார்கள். अरे जिसको माना था वो ये भी नहीं रहा। நாம் யாரை நம்பினோமோ அவரே இல்லை. இப்போ अभी यहूदी हमको छोड़ेंगे नहीं। யூதர்கள் நம்மை விட மாட்டார்கள். डरे हुए घबराए हुए रूम में बंद थे। நடுங்கி கொண்டு ரூமுக்குள்ள இருந்தார்கள். उस बंद कमरे में यीशु आए। அந்த பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே கர்த்தர் வந்தார். पहला उनसे कहा, கர்த்தர் முதலாவது சொன்னார், तुम्हें शांति हो, உங்களுக்கு சமாதானம் तुम्हें என்றார். सलामती हो। உங்களுக்கு சமாதானம். हालेलुया। ஹalleluya. हर हालात में, எந்த நிலையிலும், हर मुश्किल में எந்த பிரச்சனையிலும் वो हमें शांति देने के लिए वो के सामर्थ्य है। அவர் நமக்கு சமாதானத்தை அருள அவர் वो வல்லவராய். शांति का राजकुमार है, அவர் சமாதானத்தின் वो தேவன். हमें शांति देता है। அவர் நமக்கு சமாதானம். वो शांति जो दुनिया कभी नहीं दे सकता, அந்த சமாதானத்தை वो உலகம் शांति நமக்கு जो கொடுக்க दुनिया முடியாது. की चीजों से नहीं मिल सकती, உலக பொருளால் நமக்கு கிடைக்காத वो அந்த दुनिया की சமாதானம். शांति कुछ पल के लिए होगा, அந்த சமாதானம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் लेकिन आके இருக்கும். उम्र भर के लिए के मायूसी होगी, அது वेदना देगी। வாழ்க்கை முழுவதும் அது வேதனை தரும். वो के बिगड़ा लड़का वो शांति को ढूंढ कर दुनिया में गया था, वो बिगड़ा लड़का केटक कुमार, அந்த கெட்ட குமாரன் சமாதானத்தை थोड़े दिन के लिए உலகத்துக்குள்ளே उसको वो போனான். दुनिया की शांति उसको मिली, உலகத்திலே அவனுக்கு சமாதானம் கிடைக்கவில்லை. लेकिन बाद में वो कंगाल बनकर आके भिखारी बनकर अपने बाप के पास आया। எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகு தன்னுடைய दुनिया की शांति को ढूंढ के जाएंगे तो உலக சமாதானத்தை தேடினால் आपको कंगाल बना के भिखारी बन के वापस लेकर आए। நீங்கள் மறுபடியும் தரித்திரனாகி वர வேண்டியிருக்கும். लेकिन प्रभु से सच्ची शांति है, கர்த்தரிடத்திலே சமாதானம் உண்டு. वही हमें सच्ची शांति देता है, அவரே உண்மையான சமாதானத்தை वो நமக்கு है कि हमें தருகிறார். देखता है, அவர் நம்மை பார்க்கிறார். वही है वो जीरे है
அந்த காண்கிறவராகிய தெய்வம் वही हमें देखता है, அவரே நம்மை हमारे आंसू को देखता है, அவரின் கண்ணீரை वो सब कुछ जानता है। அவர் எல்லாவற்றையும் वो आके वो कलवरी पहाड़ में आके उसने आके हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் நமக்காக उसी पहाड़ में जो परमेश्वर का मेमना जो आके बलि चढ़ा गया, அந்த கொல்கத்தா மலையிலே அந்த ஆட்டுக்குட்டியான பலியிடப்பட்ட போது उद्धार के जाके देख लिया हमारा उद्धार कार्य को, ரட்சிப்பின் எல்லா காரியங்களையும் அங்கே और सब कार्य को वही देखता है। அவரே எல்லாவற்றையும் वही பார்க்கிறார்। है कि हमारे यहोवा राफा है, அவரே நம்முடைய யெகோவா ராஃபா, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, சுகமாக்குகிறவர், वही चंगा कर सकता है। அவரே நம்மை उसका अनुग्रह हमें आके अब तक संभाल के रखा, அவருடைய கிருபை நம்மை वही இந்நாள் जो வரைக்கும் कि हमारा के इस प्रकार के शांति है। அவரே நம்முடைய हमारे சமாதானம், हर मुश्किल में हर हालात में हमें शांति देता है वो। எல்லாவற்றிலும் எல்லா வேளையிலும் அவர் நமக்கு சமாதானத்தை அருளுகிறார்। यही जो परमेश्वर का नाम है, இதுதான் தேவனுடைய और जो कई नामे हैं, இன்னும் अनेक பேர்கள் உண்டு। परमेश्वर की इच्छा होगा तो வரும் நாட்களிலே கர்த்தருக்கு பிரியமானால் उसके कार्यक्रम और भी आके और गहराई से हम जानेंगे हम। அந்த காரியங்களை இன்னும் நாம் ஆழமாக जैसा मूसा ने आके मूसा से प्रभु ने कहा, மோசேயிடத்து தேவன் சொல்லும்போது मैं हूँ जो सू हूँ करके, நான் இருக்கிறதாக वही இருக்கிறேன், परमेश्वर हमेशा आबा तक हमारे साथ रहेगा। அதே இறைவன் என்னாலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவராய் वो இருக்கிறார்। जो वो था, அவர் இருந்தவர், वो है, இருக்கிறவர், वो आगे भी हमारे साथ रहेगा। இன்னும் நம்மோடு கூட प्रभु यीशु ने இருக்கிறார்। कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, உலகத்தின் கடைசி வரை நான் உங்களோடு उसी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। அதே தேவன் நாம் वो ஆராதிக்கிறோம்। परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நம்மை கைவிடுவதும் हम இல்லை। उस परमेश्वर के साथ आके पैरों से लिपटे रहे, அவருடைய பாதங்களை தழுவி इस கொண்டிருப்போம்। नाम को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें। இந்த நாமங்களை கொண்டு நாம் தேவனிடத்தில் हे ஜெபிப்போம்। प्रभु यहोवा राफा तू है, யெகோவா ராஃபா என்பவர், यहोवा यीरे तू है, யெகோவா ஈரே அவரே, यहोवा तू शालोम है, मुझे शांति अता कर करके யெகோவா சாலோம் அவரே। उसके नाम के जो कैरेक्टर के हिसाब से அவருடைய பேரின் தன்மைக்கு தக்கவாறு वो हमें आके अपनी चंगाई को, अपने अद्भुत काम को हमारी जिंदगी में அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செயல்களை செய்கிறார்। आगे ऐसे करके प्रभु के आशीर्वाद को हम आगे पाएंगे, இவ்விதமாக நாம் ஜெபித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் प्रभु सचन को आशीष करें। கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பார்।